السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے؟ الحمد للہ. چلو ریکارڈنگ. ہاں کر دیا وہاں. ہاں چلو بسم اللہ. پہلا تو ٹوٹل 4 سوال ہے آج کا. تو میں دیکھ لیا زبیر بھائی آپ کا سوال اور اس کے اوپر ایڈ کرے مدثر بھائی. اس کے علاوہ اوپر کے 3 سوال کیا تھے شارٹ میں اپن پہلے تو بھائی جان کا جو بقرعید کا سوال تھا شاید. ہاں وہ بقرعید کا تو بڑھا رہی گا سیشن. ہاں اس کو لاسٹ میں دیکھیں گے. عادل بھائی اس کو عادل بھائی یہ جو بقرعید کا جو سوال ہے نا وہ جب شیو رہتے ہیں جب کریں گے اپن. اچھی بات ہے. کیا فیملی ممبر کے اوپر تھا نا کتنے فیملی ممبرس کو جو ہے ایک دے سکتے کیا ساتھ میں گھر میں رہو نہ رہو. ٹھیک ہے وہی تھا. اور اس کے علاوہ بھی اس میں اور کچھ سب پارٹ تھے نہیں. ہاں وہ ایکچولی جو ہے اب ہم جو بتا دیتے پورے ایک فیملی پہ ایک چلتا یا پوروں پہ دیے تو اچھا ہے یا وہ تب اس کے اوپر پھر کچھ لوگ بولتے کہ نہیں اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو پوروں پہ 2 بولتے. تو وہ کیا کیٹیگریز ہے وہ معلوم ہونا ہے. اچھی بات ہے. ٹھیک ہے وہ ایک ہے. نیکسٹ اور کون سا ہے؟ منصور کا ہے. عادل بھائی ہاں عادل بھائی میرا کیا تھا سوال بولے تو میرے 2 چھوٹے سوال تھے میرے بڑے نہیں تھے کہ اپن ہمیشہ یہ سن لیتے آئے کہ بھائی اگر آپ 3 جمعے نماز نہیں پڑھے مسجد میں جا کے تو آپ کافر کہلاتے وغیرہ وغیرہ بول کے لوگ بولتے ہیں ہمیں ایسا. تو یہ بات صحیح ہے عادل بھائی؟ جی ہاں وہ ہاں رائٹ یہی سوال تھا نا آپ کا. جی. اور تھرڈ زبیر بھائی کا سوال. نہیں تھرڈ میرا اس تھا. جی تھرڈ میرا یہ تھا کہ عادل بھائی اگر کوئی نان مسلم اپنے کو السلام علیکم بولا تو اپن اس کے جواب میں وعلیکم السلام بولنا یا صرف وعلیکم بولنا یا کچھ بھی نہیں بولنا. یہ ذرا لمبا ہے سوال. یہ سب سے لاسٹ میں کریں گے. اس میں ذرا گہرائی میں تھا سلام کا امپورٹینس اور سلام کو صحیح تھوڑا وہ سمجھنے کے بعد میں آپ لوگ خود فیصلہ کر سکتا. سر لٹرل میننگ انڈرسٹینڈ کرے. سلام کیوں کرو بولتا سر اسلام میں سلام ہے کیوں کرنا ہم سلام ایک دوسرے کو. تو ہم مقصد کیا ہے سلام کا. اللہ تعالیٰ کیوں ہمارے پہ فورس کرے سلام ہم مسلمانوں کو. اس کو سمجھے نا آپ خود یہ سوال کا جواب دے سکتے کہ کافروں کو بولنا نہیں بولنا نان مسلم کو بولنا نہیں بولنا اور خود ہی چاپ کر لے سکتے. تو وہ بیسک کو اچھا تھوڑا انڈرسٹینڈ کریں گے. تو یہ سب سے لاسٹ ہے. اور آج جو ہے ہاں وہ نماز بیچ میں تو زبیر بھائی کا پہلے سوال کر دیں گے سمپل ہے. اور مدثر بھائی بھی اس کو ایڈ کرے وہ کمپلیٹ کر دیں گے. اس کے بعد میں بقرعید کے اوپر جائیں گے. لاسٹ میں جو ہے سلام کے اوپر تھوڑا لمبا ڈسکشن کریں گے ٹائم ملا تو. ایٹ لیسٹ یہ ہو جاتا کہ 3 تو بھی سوال ہو گئے. میں جو ہے ایک پوائنٹ کلیئر کر دیتا ہوں. آج جو ہوا نا وہی نماز کے تعلق سے. ٹھیک ہے اب حملہ جو ہے ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے گئے تو ساتھ میں جو ہے کچھ اور لوگ جو باہر سے آئے تو ان کا جو وہ ہے سفر میں وہ لوگ. ٹھیک ہے سفر میں ہے. ہاں تو ہم لوگ جو ہے اکثر جو سفر میں ہے وہ لوگ پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لیتے. ٹھیک ہے اور جو فرض پڑھ رہے ہیں وہ پیچھے جو ہے 4 رکعت بعد میں 2 رکعت بعد میں کنٹینیو کر لیتے. اور ہمارے ساتھی وہ بولے انہوں یہ بولے کہ ہم فرض پڑھنا پہلے اور انہوں جو سفر میں 2 رکعت وہی ختم کر کے انہوں کمپلیٹ کر لیتے. اپن 4 رکعت پڑھ لے سکتے ہوئے بولتے صاحب اوپر. تو یہ دونوں وے کیسا ہے دونوں بھی صحیح ہے یا کچھ ایک وے کریکٹ ہے ایسا؟ اچھا شروع یہیں سے کریں گے. پہلی چیز سفر میں جو ہے ان کو 4 کے بدلے میں جو 2 ہے وہ سفر کے رولز ہے. جی رولز مطلب فرض ہے فرض نہیں ہے. رسول اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ پریفر کرتے تھے امت کے لیے آسانی ہو کہ وہ 4 کو 2 کر دیتے تھے فرض میں رہتے اور دوسرا ملا بھی دیتے تھے. جیسا ظہر پڑھے اس کے ساتھ اثر پڑھ لے کے نکل جاتا تھا. مطلب آپ سفر میں ایک ہی بار روکنا نہیں روکنا. ظہر کے لیے روکے اثر کے لیے روکے. بڑے بڑے قافلے ہیں سب کو روکنا کام ہے. جنگ کے لے جا رہے یعنی تو جگہ سیف نہیں ہے. جلدی آپ کو مغرب تک اندھیرے تک آپ کو آپ کے ایریا میں پہنچنا ہے. فلاں کئی لوگ سفر جنرلی انجوائے کر لیتے ہوئے نہیں جاتے
उमूमन वैसा भी जाते लोग, हाँ, कि ये काम से निकलते काम खत्म होता, तो वो हड़ाबड़ी में रहते, तो इसके लिए क्या करते, हड़ाबड़ी में पड़े भी नमाज उतनी कंसंट्रेशन से नहीं होती, क्योंकि जल्दी में रहती, ट्रेन निकल गई, खाना लिए क्या, बच्चे खाए क्या, इस तरीके से रहती। तो इसके लिए क्या करें, अल्लाह ताला जो है नमाजों को मिलाओ बोले। जोहर 2 रकात, फिर 2 मिनट रुको, खामा दे दो, असर मगरिब के लिए एक बार रुको तो मगरिब पढ़ो, उसके फौरन बाद में इशा पढ़ लो। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत है, मगर फर्द नहीं है। फर्द नहीं इन द सेंस बोले तो अगर कोई बोले नहीं मैं मगरिब असर की नमाज दूसरी जगह पे तो पढ़ता हूँ तो पढ़ सकते, मगर सुन्नत का सवाब नहीं, मतलब रसूलुल्लाह की सुन्नत को करने का जो सवाब मिलता वो तरीके को अमल करने का सवाब है आसानी वाला रास्ता यूज करना। तो जितना हो अपन नमाजों को मिलाना और नमाजों को शॉर्ट करना, मतलब चक्दो करना, ये जनरल रूल है। अब रही बात, अब आप जैसे मस्जिद में आए हुए हैं और वहां के लोकल्स भी है और बाहर से आयसो वाले हैं, आयसो वाले अगर मगरिब पढ़ा रहे, उन्हें नमाज लीड कर रहे, तो आप पीछे पढ़े 3 रकात आप भी मगरिब पढ़ रहे या फजर पढ़ रहे, तो आपको कोई मसला नहीं है। मसला किधर होता, जोहर असर और इशा में होता। तो जोहर असर में उन लोग 2 रकात पढ़ना, मगर जो है आप 4 रकात पढ़ रहे, तो प्रेफरेबल ये होना चाहिए कि आप ही नमाज लीड करना और उन लोग आपके पीछे नमाज पढ़ना, और 2 रकात नमाज के बाद में लोग सलाम फेर के हट जाना और आप अपने हिसाब से 4 रकात नमाज कंटिन्यू कर लेना। तो ये तरीका बेस्ट है। उस और एक इसमें और एक फायदा क्या है कि मुसाफिर जनरली जो है प्रेफरेंस नहीं दिया जाता नमाज लीड करने का। आदमी लोकल कंडीशंस, लोकल सिचुएशंस को अच्छा अंडरस्टैंड, वो लोग ही नमाज लीड करना चाहिए। मगर कई बार कोई बड़ी शख्सियत और लोग जैसे जाकिर नायक आ गए आपके पास और आप नहीं आपके पीछे नमाज पढ़ते, हमारा आपके पीछे नमाज पढ़ते, हमारा आपके पीछे पढ़ना है, हो सकता मोहब्बत में हो, तो एक्चुअली अच्छा नहीं है, क्योंकि फिर आपको जो है उन्होंने नमाज फिर 2 रकात के बाद में, क्योंकि उन्होंने 2 रकात भी पढ़ते, फिर आप अपने कंटिन्यू 2 कर सकते। अब ये जो मसले मसाइल है ना, ये एक्चुअली फिक्ह के मसले है। फिक्ह का अंडरस्टैंड करना कि कुरान में चीजें क्लियर है, हदीस में चीजें है, हदीस और सुन्नत एक ही है, हदीस और सुन्नत में चीजें क्लियर है, बाकी चीजें मसले मसाइल है उमूमन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाइफ में या सहाबियों में इसकी क्लैरिटी नहीं हुई और अब समझ में नहीं आ रहा क्या जवाब देना। तो आप क्या करते हैं, फिक्ह बोलते हैं। फिक्ह बोलते इंटेलिजेंस को यूज करके आप एक फैसला करते हैं, मगर फैसला हर आदमी का अलग हो सकता, हर ग्रुप का अलग हो सकता, क्योंकि वो आदमी की सोच पे भी डिपेंड करता। इसी वजह से हनफी, शाफी बोल के 4 है, ये चारों फिक्ह है। फिक्ह का मतलब क्या है, लीगल अंडरस्टैंडिंग की इंपॉर्टेंस नहीं है उस सेंस में, कुरान हदीस के जैसा उसका इंपॉर्टेंस नहीं है। मगर अब आपको कुछ तो सोल्यूशन होना ना, अब आप क्या करना नहीं करना, बोले तो ठीक है, फिक्ह वाले हनफी ऐसा बोले, शाफी ऐसा बोले, उनका ओपिनियन है जो आप पिक एंड चूज कर सकते। आपको दिखता कि जो कुरान हदीस के से नजदीक है, आपको ज्यादा दिखता, तो आप पिक एंड चूज करते। तो बोलने का मतलब ये क्या है कि हार्ड एंड फास्ट इसको प्रूफ नहीं कर सकते इसको कि ये हिच करेक्ट है इस मसले में, शाफी गलत है बोल। हाँ, अगर इससे टकरारे, उनको कोई हदीस नहीं मिली, कुरान तो सबको थी, हदीस से टकरारे, उनको एक हदीस नहीं मिली थी, उनके पे वो हदीस अवेलेबल नहीं थी, इमाम बुखारी पैदा हुए, इमाम मुस्लिम पैदा हुए हनफ के बाद में, पहले इमाम अबू हनीफा का, इमाम शाफी इला पैदा हुए, इला अपने हिसाब से हदीस के किताबा नहीं थे तो अपने हिसाब से फैसले करे। उनके 50-60 साल के बाद में नेक्स्ट जनरेशन में हदीस की किताबा लिखे जाने लगे, जमा होने लगे, वेरिफिकेशन होने लगे, ऑथेंटिकेशन होने लगे। तो जब कई चीजें अगर हदीसों से टकरा रही क्योंकि उनको नहीं मालूम है, तो जब आप फिक्ह के चीजों को आप निगलेक्ट कर सकते, क्योंकि फिक्ह का ओपिनियन बाय इटसेल्फ कोई स्ट्रांग ओपिनियन नहीं है। मगर कई बार काम कुछ तो लेना पड़ता ना। फॉर एग्जाम्पल आप कोई बोले भाई कि कार से मस्जिद को जा सकते क्या, अब कुरान हदीस से मेरे को बताओ। कुरान हदीस के जमाने में तो कार थी नहीं, तो अब हराम है हलाल है, हमें जाना नहीं जाना, मैं कार स्टार्ट करूँ ना तो स्टार्ट करूँ, एरोप्लेन में जा सकते क्या, एरोप्लेन का मसला, उसका मसला, अरे कुरान हदीस में तो जिक्र नहीं है। तो फिक्ह वाले कुछ तो भी सोच समझ के देखो भाई, वो ऊंट पे जाते थे, ऊंट पे हज भी करे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऊंट पे तवाफ भी करे, ऊंट पे सफा भी करे, तो मतलब चीज कार भी है ना, तो जब ऊंट कर सकते हैं तो कार पे भी कर सकते हैं, तो आप कार पे जाइए, कोई मसला नहीं है बोल के वो लोग ओपिनियन दिए। मगर वो ओपिनियन है, कुरान हदीस के जैसी उसकी वैल्यू नहीं है कि हाँ बोल दिया ना, नफी फिक्ह में लिखा हुआ है मान लो तुम, चाहे वो बहस है,
शाफे में लिखा हुआ है ना, ऐसा उसको एनफोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पीछे कोई बैकिंग, स्ट्रॉन्ग बैकिंग नहीं है। कई बार बैकिंग मिल जाती, कई बार एक हदीस मिल जाती जिसको सपोर्ट करते, तो माशाल्लाह, नहीं है तो उसकी कोई उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है। तो अब जिसके वजह से जो अब बाकी के आपके पूरे सवाल है, मैक्सिमम सवाल फिफ्थ के ऊपर है, और फिफ्थ का जो है वीक है बाय इटसेल्फ, उसके कोई एग्जैक्ट उसका आंसर नहीं है, डिपेंड करता, थोड़े लोग ऐसा बोलते हैं जैसा जुबैर बोले, थोड़े लोग ऐसा बोलते हैं, थोड़े लोग वैसा बोलते हैं, तो फिर करना बेस्ट ऑफ द ओपिनियन लेना, कुछ हदीस के नजदीक कुछ मिल रहा था, ये ओपिनियन स्ट्रांग है, ये फतवा स्ट्रांग है, इसको ले सकते बोल के अपन जो है इस तरीके से करना। अब कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन कि मुदस्सिर भाई बोले कि अब उन्होंने जाकिर नाइक जैसे आ गए, हमने उनको लीड करो बोले, उनको इंसिस्ट करे, अरे नको बोलते नहीं आप लीड करो बोले, तो अब उन्हें 2 रकात पढ़ के उन्होंने सलाम फेर देते, फिर हम करना, हम फिर बाकी के 2 रकात करना। ये ओपिनियन लॉजिकली ठीक है, कहीं बोलता आपके 4 होना चाहिए था और उनके सिर्फ 2 थे जनरली, तो आप बाकी के 4 कंप्लीट कर लो, कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई ऐसी इसको सपोर्टिंग भी कोई चीज नहीं है, इसको डिनाई करने वाली भी कोई चीज नहीं है, तो इन दैट केस इट इज ओके, उन्होंने भी लीड कर लिए। अच्छा, आप लीड कर रहे तो आप 4 रकात पढ़ रहे, तो ऑब्वियसली 2 रकात तो पीछे पढ़ रहे आपके, दोनों सलाम फेरते थे, उन्होंने चले आते, तो इस तरीके से ओके इन द सेंस कोई स्ट्रांग ओपिनियन किसी का नहीं है इस पे। आदिल भाई, आपका पहला सवाल यहाँ पर सॉरी जी बोलिए। यहाँ पर जो तरीका है, मतलब जो बता रहा हूँ मैं आप, क्योंकि मतलब हम लोग कई लोग, मतलब मुदस्सिर भाई क्या, मंसूर भाई, मैं भी, हर कोई मतलब टूर्स करते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब भी हम ऐसा नमाज का मौका मिलता पढ़ने का पेट्रोल पंप्स पे या मतलब कोई एरियाज में, तो जब भी हम बोलते हैं खसर पढ़ रहे हैं, तो बोलते हैं आप इमाम बन जाओ बोल के बोलते हो। आपको कोई इमाम बना? मैक्सिमम ये है, यहाँ पर मैक्सिमम ये है कि जो खसर पे रहता आदमी, उन्हें इमाम बनाए थे, लोकल सऊदी वाले, अरब हाँ जी हाँ। अच्छा, हाँ, क्योंकि आप खैर आप जो बात बोले कि अगर मुकामियत में अगर 4 रकात पढ़ रहा, आप 2 रकात पढ़ के आप सलाम कैसा करेंगे? इमाम साहब भी सलाम नहीं बोल रहे ना वहाँ पर। नहीं सलाम आप फेर दे सकते, कोई ऐसा मसला नहीं। इमाम को आप जब तक फॉलो करना है फॉलो कर सकते हैं, जैसा आप उन्हें सिजदे में गए तो आप उनके बाद में सिजदे में जाते, रुकू में गए तो उनके बाद में रुकू जाते, उनसे पहले नहीं जाते। मगर तोड़ना तो आप अपनी मर्जी से तोड़ दे सकते हैं, क्योंकि आपको कोई इमरजेंसी आ गई, कोई पीछे चीख रहा या बच्चा रो रहा है, बच्चा पानी में गिर रहा, तो आप सलाम तोड़ने में कोई ऐसा मसला तो नहीं। सलामी थोड़ी देना, तोड़ना तो वैसे भी जब तक है उनको फॉलो कर, जब तोड़ दे तो उनको क्या फॉलो कर सकते, ऐसा कुछ वो मसला नहीं। अगर अरबों में पता नहीं क्यों कल्चर है कि ऐसा अब मुकामी आदमी को आगे बढ़ाते। बेसिकली क्या है, जो मुसाफिर है, हदीस में उसकी तारीफ की गई क्योंकि मुशक्कत में रहता, तकलीफ में रहता, उसके बावजूद अगर उन्हें टाइम निकाल के दुआ करा तो अल्लाह ताला जो है मुसाफिर की, बीमार की दुआ ज्यादा कबूल करे। तो उसके लिए क्या करते हैं, आप मुसाफिर है ना, आपकी दुआ ज्यादा कबूल होती, आप नमाज लीड करो बोल के पुश करते होंगे। मेरे को ऐसा समझ में आ रहा, मैं तो रहा नहीं इस कंट्री में, तो उनके कल्चर को नजदीक से नहीं देखा, पर मेरा गेस है क्योंकि मैटर करता, कई बार कोई एरिया हो सकता, मगर मेरे को तो ये एक ही रीजन दिख रहा, या नहीं तो प्रमोट करना चाह रहे, या नहीं तो आपको ब्रदरहुड पैदा करना चाह रहे कि हम अरबा आपको इज्जत करते हैं, आपको आप इंडियन है बल्कि आप नेगेटिव मत समझो, इस्लाम में सब बराबर है। उसका एग्जाम्पल क्या, काले हबशी भी रहे तो उन्होंने आपके इमाम बन सकते, तो इस्लाम में इंक्लूसिविटी है, हम आपसे मोहब्बत करते, आप हमारे सकते, ऐसा नहीं है बल्कि वो कॉन्सेप्ट करना चाहते, उस वजह से कल्चरली इज्जत में आ गया, नहीं मालूम, अल्लाह आलम उसके पीछे रीजन तो नहीं, मगर बाई इटसेल्फ गलत बात तो नहीं है, मगर इंडिया में प्रेफर करते हैं कि मुकामी आदमी है तो वो तौर तरीके वगैरह कोई फड्डे नहीं, कई बार क्या है थोड़ा फर्क हो जाता ना, अपने नमाज में अपन हाथ इधर रखते, हाथ उधर रखते, लोकल आदमी रहा बोले तो भाई ज्यादा लोग हम फड्डे नहीं करते, बल्कि एक तरतीब निकाले इंडियंस, क्योंकि जब हज को उम्रा को इधर उधर जाते हैं वो लोग प्रेफर नहीं करते लीड करने की, लोकल आदमी कुछ लीड करने देते, बोलते फिर बाद में फिर कुछ उंगली निकालेंगे, आप ऐसा करें, आप हाथ उधर करें, आपकी दलाइल क्या है, आपकी बहस क्या है, ऐसा हो सकता, बल्कि इंडियन में देखा वुमन जो है प्रेफर नहीं करते, मगर वो भी उनका पर्सनल ओपिनियन है, उनके एक्सपीरियंस से बोलता हूँ, कुरान हदीस में उसका कुछ भी नहीं है उसका। ओके, अब वो ये तो क्लियर हो गया, मसला नहीं है। अब जुबैर के जो क्वेश्चन थे वो नमाज के ताल्लुक से ही है, वो जुबैर भाई दोबारा जरा बोलो, मैं भूल गया कौन जुबैर है, कहाँ से शुरू करे थे अपन? वही था कि मतलब ये भी मेरे ख्याल से कल्चरल या ये मतलब यहाँ पर लोकल सिस्टम के होगा, जैसा 1 रकात। मेरा मेन क्वेश्चन क्या है, क्योंकि मेरे साथ परसों हुआ ही है,
میں آفس میں ظہر کی نماز پڑھنے گیا میں اوپر, آلریڈی ایک بندہ پڑھ رہا تھا نماز, ٹھیک ہے, ایک ہی بندہ فرض نماز. تو میں ایسا آپ کو کیسا معلوم انہیں فرض پڑھ رہا ہے کہ میں جماعت جوائن کر لیتا ہوں میں, اوکے. پھر دوسرا آدمی آیا تو میرے کو ہاتھ لگا کہ میں پیچھے چلے آنا, مطلب اتنا موومنٹ ہے نماز میں, اتنا, ٹھیک ہے. پھر میرے سے کیا ہو گیا, میں حالانکہ 3 رکعت میں سلام کر لیا, میں 4تھی رکعت نہیں پڑھا میں. کیوں نہیں پڑھے آپ پورے رکعت؟ مطلب امام کے ساتھ میں 1 رکعت لیٹ جوائن کرا, تو امام جب سلام پھیرے, امام کے 4 ہو کے میرے 3 ہوئے نا, تو میں سلام پھیر لیا میں غلطی سے. اچھا غلطی سے, اچھا. تو ایسا اس کا کفارہ مطلب نہیں, کمپنسیٹ کرنا ہوگا. کفارہ کچھ نہیں ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک کنفرم حدیث ہے. یہاں پہ فقہ نہیں ہے, یہاں پہ کنفرم حدیث ہے اس سچویشن پہ, لکیلی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسی نماز پڑھا رہے تھے اور 4 رکعت تھے, 3 رکعت پڑھا کے سلام پھیر دیے. صحابیاں پیچھے یوں دیکھ لے رہے, کیا ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کیا ہوا, کہیں کو ایسا دیکھ لے رہے ایک دوسرے کو. نہیں وہ ہم کو پتا نہیں, آپ 3 رکعت پڑھائے, 4 رکعت تھے نا, اللہ تعالیٰ شاید حکم چینج کر دیے ہوں گے, آج سے 3 رکعت ہو. تو نہیں ایسا کچھ حکم نہیں ہے, 4 رکعت اس تھے, میں بھول گیا. اچھا کوئی بات نہیں, چلو سب پھر کھڑے ہو جاؤ, چلو سب کھڑے ہو جاؤ, اللہ اکبر بولو, 1 رکعت پڑھا دی, کفارہ نہیں, کچھ نہیں, 1 رکعت پھر اللہ اکبر بول کے پڑھ لو. اچھا ایسا 1 رکعت پڑھ لے سکتا ہے اللہ کا, آپ مس کرے نا. ایک میرے ساتھ ایسا ہوا کیا, یہ ایک بچے, اچھا مگر اینڈ میں سجدہ 100 کرنا, ایک سجدہ ایکسٹرا کرنا, سجدہ 100 نماز وہ ایک ہی میرے ساتھ ہوا, ریاض میں میرے ساتھ جو ہے ظہر کی نماز یا اثر کی نماز کے ٹائم پہ 3 رکعت ہی پڑھے تھے. پھر وہ ایسا کنفرم کرے کہ آپ 3 ہی پڑھائے, وہ تو پھر انہوں کھڑے کے پھر 1 رکعت پڑھ کے پھر یہ کنفرم حدیث ہے اس کے پر. اگر آپ مس کر دیے, امام کے ساتھ میچ کرتے رہتے اپن لوگ بھول جاتے کہ اپن ایک مس کر دیا, انہوں سلام پھیرتا, اپن بھی سلام پھیرتے, کوئی مسئلہ نہیں. یہ کوئی اتنا اسٹرکٹ والی چیز نہیں ہے, یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ گولڈ کے اندر جو ہے سلور ملا دیا پورا برباد ہو گیا, بھائی پورے چیزیں گر گیا, گولڈ تباہ ہو گیا, ایسا کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے, اٹس آل اباؤٹ کنیکشن وتھ اللہ. صلاح کیا ہے, تو آپ پھر ٹھیک ہے, اوکے مس کر دی, چلو غلطی ہو گئی, اللہ اکبر بولو, 1 رکعت پڑھ لو, سجدہ 100 کر دو اور ختم ہو گیا. کفارہ وغیرہ نہیں ہے, کفارہ ذرا بڑے چیزوں کے لیے ہے وہ ورڈ جو یوز کرتے ہیں. تو یہ کنفرم حدیث ہے, تو آپ یہ چیز کنفرم, کوئی اگر نہیں کر رہے تو ان کو سمجھانا, بتانا کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ پھر پورے 4 رکعت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اپنے احتیاط کے لیے دوبارہ بھی پڑھ لے سکتے ہیں. مگر سنت طریقہ یہ ہے, اور سنت کا زیادہ ثواب ہے, اور سنت زیادہ بہتر ہے. سنت کو زندہ کرنا, سنت تو ایسا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہوا, انہوں بھی انسان تھے, انہوں اللہ کے حصے نہیں ہیں, آپ کا نور, انہوں ڈیوائن نہیں ہے, انہوں ہیومن بینگ ہے اس سینس میں. ان سے غلطی ہوئی, انہوں بھول گئے کئی بار چیزیں, ایسا ہوتا تھا. بزنس میں جیسا ہوتا نا, 10 روپے دیے تھے یا 15 روپے دیے تھے, یاد کرے تو فرق تھا. خان کے معاملات میں نہیں بھولے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو پریزرو کرے, ان کی ہر چیز کو ٹیک کیئر کرے. تو یہ کنفرم ہے, تو اس کے اوپر عمل کر سکتے, اور دوسروں کو اگر نہیں کرے تو تنقید بھی کر سکتے اور ایکسپلین بھی کر سکتے, مگر پیار محبت سے. زبردستی کرے تو انہیں اور ضد میں آنے, یہ ہمیشہ خیال رکھنا. تو عادل یہ بھائی, تھا, اور کیا تھا آپ کا؟ عادل بھائی ایک اور ایک کوشچن ہے نا عادل بھائی, کہ مطلب ایک آدمی سنگل فرض نماز پڑھ رہا, کوئی مطلب میں ٹچ کر کے میں جماعت جوائن کر سکتا ہوں ایسا؟ یہ ایکچولی ایسا کوئی پروف نہیں ہے, یہ کوئی حکمت ہے. اب دیکھیے اصل مسئلہ کہاں سے شروع ہوا, اور ایک ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں جی یہ پوائنٹ میں. اب فرض کے فرض نہیں, اگر آپ سنت بھی پڑھ رہے ہیں تو وہ لوگ آ کے ہاتھ لگا کے جوائن کر دیں. نہیں کرنا چاہیے. سنت جو ہے الگ الگ پڑھنی چاہیے, سنت جماعت میں اصل پڑھنی چاہیے. مدثر بھائی کیا بولنا چاہ رہے ہیں کہ جو جوائن کر رہا ہے اس کو کیا معلوم کہ سنت پڑھ رہے ہیں یا فرض پڑھ رہے ہیں؟ اس کو نہیں معلوم. ہاں, اس لیے کیا کرنا, اس کے بدلے میں اس کو بولنا, بھائی آپ لیڈ کرتے کیا, ہمارے کو پڑھاؤ نماز, بول کے بولنا اس کو. تو انہیں ٹھیک ہے بول کے ریڈی ہوا, یعنی تو سب مل کے وضو کر کے آئے, ارے چلو اپنے کو بھی چلو اپن میں سے کسی کو امام بنا کے اپن شروع کریں گے. یہ آئیڈیل طریقہ ہے. اب ایک نیا طریقہ شروع کرے گا کہ ایک آدمی ہے, تو ایک آدمی پہلے سے نماز پڑھ رہا, اور دوسرا آدمی وضو بنا کے آیا, انہیں بولا میں اکیلی نماز پڑھنا, میں کہیں کو اکیلی میں کہیں کو ثواب چھوڑ دوں یہ جماعت کا. تو انہیں کس کو تو بھی دیکھتا, ارے انہیں پڑھ رہا, چلو اس کے ساتھ چپک دیں گے, اس کو بھی سوال, پڑھنے والے کو بھی ثواب ڈبل ہو جاتا, میرا بھی ثواب ڈبل کرنے کے چکر میں 70 گنا کا ثواب لینے کے لیے کیسا نہ کیسا گھس
हाथ बनेंगे, एक से दो बनाएंगे, तो दो को देख के फिर और लोग बोलते हैं अरे मैं इसको पकड़ेंगे, इसको टच करेंगे, बोल के टच करके पीछे लेके जो है करते। और टचिंग या हिलना पीछे होना कोई इस्लाम में नहीं है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हरकतें ये हनफ इंडिया में बहुत पॉपुलर, बॉडी में हिलना, हरकतें करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक बार एक नवासी थी उनके, हदीस सही हदीस से बोल, उमैमा बोल के, वो बच्ची को गोद में लेके नमाज पढ़े। अब आप एक छोटी बच्ची को लेके नमाज पढ़े तो कितनी हरकत रहते, आपको कितना उठना पड़ता, फिर बच्ची को बाजू रखना पड़ता सिजदे के टाइम पे, रुकू के टाइम पे, फिर उसको उठ के लेना पड़ता, फिर हाथ में पकड़ना पड़ता, फिर बाद में नीचे रख के फिर सिजदा करना पड़ता। तो ऐसा मूवमेंट्स के ऊपर उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। लोगों क्या है फिजिकल एस्पेक्ट पे बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, हाथ ऐसा नहीं हिलना, ये कपड़ा नहीं उठना, वो उधर चलेगा, मुंडी इधर रहती, नजर उधर रहती। हाँ, प्रिफरेबली ज्यादा नाचम कूदी नहीं करना कि जैसे कि म्यूजिक पे डांस कर रहे हैं, यानी तो बहुत फ्लेक्सिबल, ऐसा नहीं। मगर इंपॉर्टेंस फिजिकल जेस्चर पे कभी भी नहीं रहा। नमाज अबाउट कॉन्सेंट्रेशन विद अल्लाह, जो कि तुम अल्लाह के साथ कितना तुम्हारा कनेक्शन है, तुम आयतों को कितना अंडरस्टैंड करे, तुम अल्लाह के सामने शर्मिंदगी कितनी होती, आयतों की मीनिंग क्या है, इसके ऊपर एम्फसाइज किया गया। ये फिजिकल एस्पेक्ट्स की कुछ इंपॉर्टेंस है, जैसा रुकू और सिजदा जो है रसूलुल्लाह बताए कि अल्लाह को ऐसा पसंद है, वो है, पर टू मच जाके उससे होता क्या मालूम, कॉन्सेंट्रेशन पूरा इस पे रहता, मेरा हाथ बराबर है, हाथ इधर टच तो नहीं कर रहा, पैर मेरे बराबर है, पर रुकू करो, इसमें इतने इन्वॉल्व हो जाते कि पूरे 10 मिनट नमाज के चलाते और इसी में टाइम चले जाता, फिर वो जो कॉन्सेंट्रेशन अल्लाह के साथ है वो नहीं बना, पूरा कॉन्सेंट्रेशन इधर ही चले जाता। तो इससे थोड़ा ओवर करते कि हरकत है क्या, पैर आगे करना क्या। एक बार आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बैठे हुए थे और जो है उनकी नौकरानी आके पूछे वो दूध कहाँ है, दूध कहाँ है, सब कुछ की पूछे थे। तो नहीं, कौन सी नमाज पढ़ रहे थे, चाश की नमाज पढ़ रहे थे 12 बजे, और वो जो आए थे वाले उनको नहीं मालूम था, कुछ पूछ रहे थे, उन्होंने बोले ये क्या टाइम पे आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा नमाज पढ़ रहे, बल्कि उनसे बात करे क्या है, क्या को है, क्या कर रहे इधर, बोले तो उन्होंने जो है बात नहीं करे, मगर उनकी बात सुन के उंगली से इशारा बता के ऊपर आसमान की तरफ बताए कि देखो सूरज ऊपर आ गया तो इसलिए चाश की नमाज पढ़े। अच्छा सॉरी भूल गया, ठीक है बोले। तो इस तरीके से इशारे कर सकते, बच्चों को उठा सकते, मगर हाँ नमाज पढ़ के हाँ भाई क्या चल रहा है आजकल, तो ठीक है ना, इतना तो अननेसेसरी नहीं, जो जरूरत के लिए है। जैसा यहाँ तक कि इमाम अहमद इब्न हम्बली फिक़्ह के, जो सऊदी में बहुत मानते उनको, उन्होंने तो यहाँ तक फतवा दिए कि बाजू सांप है, सांप अगर आपको दिख रहा नमाज के टाइम पे, लकड़ी लेके मार के उसको बाजू फेंक के वापस आके नमाज पे कंटिन्यू कर सकते। आप 2 रकात पे थे तो बाकी के 2 भी कर सकते, फिर शुरू से करना नहीं। तो ब्रेकिंग कुछ भी नहीं है, अनलेस कि वो इट इज फॉर अ रीजन। जैसा कुछ सेलफोन नीचे से गिर गया, वॉलेट गिर गया, कुछ चोरी हो जाता है, लोग को समझते हैं, मगर चुप कर रहे हैं, वो कर रहे हैं विदाउट रीजन, विदाउट जेन्युइन रीजन, अननेसेसरली मूवमेंट टू करना। मगर अब क्या है, इंडिया में जरा दरवाजा खोले तो खुद कर देती है पब्लिक, एकदम जाहिल है, बल्कि जरा इंडिया के लोग ज्यादा स्ट्रिक्ट करते हैं, हाथ नहीं लाना, खड़े रहना, ये क्या आगे पीछे का घोर है, हिल सकते हैं, 1 इंच आगे जा सकते हैं, 1 इंच पीछे जा सकते हैं। कोई इमाम अगर गैस कर दे के वजू टूट गया तो उन्हें पीछे आके आपको आगे करता, तो आप आगे जाके नमाज लीड करते और उन्हें पीछे निकल। तो ये सब मूवमेंट्स है, मगर ओवर नहीं होना चाहिए और अननेसेसरी नहीं होना चाहिए, जेन्युइन रीजन के लिए होना चाहिए। तो टचिंग और पीछे आना बाय इटसेल्फ को नमाज को ब्रेक नहीं करता, ठीक है। अब रहा मसला कि वो जो सुन्नत सवाब जमात का लेने के लिए एक्स्ट्रा और एक जमात बनाना, उस पर इतनी बड़ी लड़ाई है हनफी फिक़्ह में। इमाम अबू हनीफा के पास फतवा है कि एक बार नमाज हो, बाकी के जो भी आता उन्हें जमात नहीं बना सकता, उन्हें अकेले पढ़ने सवाब। तुम कहीं को मिस करे, मेन है उसको पकड़ो, मिस ऐसा करो, तुम अपने जमात बनाते रहे तो सीरियसनेस नहीं रहता ना, तो मेन जमात एक ही इंडिविजुअल पढ़ना। तो इंडिया में कहीं भी चले जाओ, हमारे दोस्त इंडिया के हनफी, वो लोग के साथ चलो भाई मिस हो गए ना, आप चलो पहुंच गए, अपन देर हो गया, चलो जमात बना लेंगे, नहीं जमात हो गई मस्जिद में, हाँ हो गई तो अपन 5 नमाज पढ़ा, तो नहीं वो हनफी है ना, के हिसाब से अलग अलग ना, जमात तो हो गई ना, अरे कहीं को गए तो बस इमाम अबू हनीफा का फतवा। मैं हदीसों में जाके चेक करा, हदीस में क्या है, ये देखो कंप्लीटली हदीस से कम करो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, नमाज जो है हो गई थी, नमाज होने के बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे और चंद लोग देख आए वजू बना के और देखे कि जमात हो गई, जरा अफसोस कर। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी को जो नमाज पढ़ चुके थे फर्ज, उनको बोले ये 2 नए लोग आए, आप इनको नमाज पढ़ा दो जमात बना के, आपको सुन्नत का सवाब मिलता, आपको भी नेकी मिलती, उनको भी नेकी मिलते। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नो कौन बोलते, सहाबी आगे बढ़े, कोने में गए, पता नहीं सेम स्पॉट पे पढ़ाया नहीं पढ़ाया उसका ओपिनियन नहीं मालूम, मगर नमाज पढ़ा है, कंफर्म हो गया कि आप 2 जमाता बना सकते हैं। मगर इंडिया में बात कोई सुनता नहीं, आपकी हदीस पेश करते भी नहीं सुनते, तुम बड़े है इमाम अबू हनीफा बड़े है बोलते हैं। तो
कि इमाम अबू हनीफा के बाद में हदीसा जमा होने लगे बुक की शक्ल में। तो ये कंफर्म है, आप इसको जिंदा करना, जमात को प्रेफरेंस देना। रसूलुल्लाह भी दूसरे सहाबी नहीं बोले आप पढ़ लो आपको मिल जाता सवाब, अकेले पढ़ लो, नहीं, उन्होंने भी जमात को एम्फोसाइज करती। इस वजह से अरबों में जमात 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 बनाने की बहुत वो रहती, मिस हो जाना, नहीं हम हमारे को होना जमात का सवाब बोल के इनको पढ़ के 2-3 ग्रुप, भाई आप पढ़ लिए क्या, आपने आप नहीं पढ़े, चलो आप पढ़ेंगे ना, फिर मिल वजू बना के ऐसा करते थे। अब ये यहाँ तक ठीक है, अब उसको क्या बोलना कि हम तेरे पीछे जमात बना लिया, अब तो इमाम बन गया, तो तेरा स्टेटस अपग्रेड हो गया। अब वो कैसा बोलना, मुंह से बोल सकते क्या? हालांकि मुंह से बोल सकते, सामने वाला सुन सकता, क्योंकि ऐसा नमाज में ऐसा पता कि हरकत कर सकते हैं। तो हरकत के पर मैं और एक पेश करता हूँ कि कितना बॉडी में हरकत अलाउड है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने छोटे घर थे कि 2 आदमियां की जगह नहीं रहती थी। घर बोल रहा हूँ, आयशा रज़ियल्लाहु रात में सोते थे लंबा, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे खड़े थे उनके, और तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे। तहज्जुद की नमाज तो कितनी लंबी रहती, आधा घंटे का एक रहता रकात, उसके बाद में रुकू सिजदे को जाते, तो जब सिजदे को जाते जगह नहीं रहती थी, आयशा रज़ियल्लाहु सोते रहते थे। पैर सिजदे में जाने से पहले पैर पे टच करते थे, आयशा रज़ियल्लाहु टच करके हटाओ, मतलब तो पैर हटाए तो उनको सिजदे की जगह बनती थी, फिर करके उठ जाने का फिर उन्हें अपना पैर वापस कर लेते थे। तो इस तरीके से ये हरकत थी, टच करके बोलना भाई हटो बोल के, मगर मुंह से नहीं बोलते थे, बॉडी लैंग्वेज। पता ये चला कि मुंह से बोलना प्रेफरेबल नहीं है, इस वजह से बोलते हैं मुंह से नहीं बोल सके नमाज के अंदर। मगर जो बंदा भी नमाज शुरू नहीं करा, खाली वजू क्या, उन्हें भी मुंह से बोल सकता है भाई मैं आपको इमाम बना रहा हूँ, आपके पीछे पढ़ रहा हूँ, तो उन्हें ओके बोल के अंडरस्टैंड कर लेता। आज वो भी प्रेफर नहीं कर, क्या कर रहे, पीठ के ऊपर थपका रहे। अब ये कहां से आया? ये ओपिनियन है। अब तो करते उसका SMS भेजो या कुछ तो भी भेजो, उसको बोलो हम आपके पीछे गए हैं, आप कंटिन्यू करो, आपको कुछ फर्क तो नहीं पड़ता, हम जो है जमात का लेते और आप सवाब मल्टीप्लाई होता। आपको ऐसा टच करना नहीं का ओपिनियन, मगर जमात तो बनाना है, तो आप उस छोड़ दे के अपने कोई बंदे को पकड़ के बना लेते, वैसा भी कर ले सकते। अब ये कल्चर है, ये आपकी आदत है, आप जो स्टेज पे कंफर्टेबल लोग तो गुस्सा आता पीछे पीठ पे हाथ लगा, भाई मेरा कंसंट्रेशन टूट गया, डरा दिए तुम, पीछे से हाथ रखो तो पहले लोग डर जाते, चमक जाते, क्या बोल के पीछे से सामने से आओ बोल। तो अब ये ओपिनियन है, अरबों में कल्चर है, तो कल्चर होने से क्या था मालूम, सामने वाला रिएक्ट नहीं करना, हाँ उसको मालूम है। वो इंडिया में करो हाथ तोड़ो पीछे, वो फादर ने तो क्या यूं घूर के देखता, तो कल्चरली वो लोग कर रहे होंगे वैसा, ओपिनियन तो नहीं है, मगर जमात तो बनाना चाहिए। अब इस एक सबसे बड़ा मसला ये है कि उससे बात नहीं करेंगे तो फर्द पढ़ रहा, सुन्नत पढ़ा नहीं होता। ऐसा हुआ है कि सुन्नत पढ़ रहा था, उसको पूरा फॉलो कर लिए, आधे बोले कि भाई मैं तो सुन्नत पढ़ रहा था, आप टच भी कर, मैं आपको बोला नहीं, मैं तो अपनी नमाज कंप्लीट कर लिया, अब आपकी हुई नहीं हुई अल्लाह वाला। तो इसका ओपिनियन ये है, ऐसा कभी हुआ नहीं, तो कुरान हदीस में इसका कोई मेंशन नहीं है। अब फिक्स से देखेंगे, फिक्स में क्या लगाई जाती है इस बात पे कि आप सामने वाला 4 रकात पढ़ रहा और आप है, तो आप 2 रकात पे तोड़ लिए ना, तो आप इसमें और उसमें चेंज, सामने वाले की नीयत क्या थी 4 रकात की, और आपकी क्या थी 2 रकात की, तो दोनों में डिफरेंस था ना, फिर भी दोनों जमात दोनों ग्रुप बन गए ना। उसी तरीके से सामने वाला इमाम गलती से सुन्नत ही पढ़ा रहा, आप बोल के उसके पीछे पढ़ लिए, तो ठीक है, उन्हें जब तक 2 रकात बराबर पढ़ा, नमाज तो नमाज है, उन्हें भी सूरह फातिहा पढ़ा, उन्हें भी रुकू करा, सिजदा, तो ठीक है, उसका सुन्नत का सवाब उन्हें, तो तुम्हारा फर्ज का सवाब, को ऐसा मसला नहीं है, बोलते। अब इसमें इतना ज्यादा खींचना नहीं, क्योंकि क्या है, ज्यादा ओपिनियंस नहीं, ज्यादा ओपिनियंस पे कोई प्रूफ नहीं है। इट्स ओके, इट्स नॉट अ बिग डील। अब कार चला है, मस्जिद को जा रहे हैं, या थोड़ा लोग नहीं मैं ऊंट पे जाता हूँ, रसूल ऊंट पे जाते थे मस्जिद को, बल्कि उन्हें अभी भी ऊंट लेके जा रहा मस्जिद को, अब क्या मतलब गलत भी नहीं है, ठीक नहीं है, तो उसको अननेसेसरली छोटे चीज को उतना अपन वैल्यू नहीं देना, क्योंकि कुरान हदीस में नहीं है, मतलब जानबूझ के अल्लाह ताला बारे में फ्लेक्सिबल छोड़ दिए, ताकि आप लोग ऐसा भी करे तो चलता, वैसे भी करे तो चलता, क्योंकि कोई स्ट्रांग ओपिनियन नहीं। तो अब जी ये मसले मसाल सीरियस नहीं लेना, कुछ बड़ा मसला मसाल है बोले तो थोड़ा वो करना, तो जानबूझ के, मैं तो समझता हूँ अल्लाह की मसलियत और रहमत है कि कोई चीज बारे में ज्यादा नहीं बोलना इसलिए है ताकि लोग अपनी मर्जी से कर सकते, आपको छूट, मेरा ये ओपिनियन है। फिर भी लोग अब जैसा ओपिनियन दो, जैसे जरूरत कुछ है तो वजू टूटता नहीं टूटता, वहां पे कुछ ओपिनियन लेना पड़ता, यहाँ पे कर भी लिए तो ठीक है, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, चलता है, भी हो रहा वैसा भी हो रहा, अल्लाह वाला। तो ये जुबैर भाई आप सेकंड पार्ट था ना क्वेश्चन का, और एक थर्ड पार्ट भी था ना, और इसी में आदिल भाई जैसा आप बोले, आप एक जमात, एक जना जमात बनाया, मैं जाके ज्वाइन करा टच करके, ओके चलो उनके 2 रकात चल रहे थे जमात वाले के, मैं 2 रकात पढ़ने के मैं कंटिन्यू, बाकी के 2 रकात
ऐसा इसका तो कोई ओपिनियन कोई दलाइल कुछ है नहीं, बहुत रेयर सिचुएशन मतलब होता होगा यहाँ पर वैसे ही पर होता कोई है, ऐसा ऑफिसर दलाइल मतलब नहीं है कोई। मंसूर फर्ज नमाज पढ़ के रकात माने, मैं टच करके 10 जाता हूँ, मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। मंसूर की नमाज हो जाती, मेरे 2 रकात होते, 2 रकात पढ़ते रहे तो कोई और आदमी आता मेरे को टच करता, फिर उन्हें जमात में ज्वाइन हुआ, फिर मेरी हो जाती, फिर उसके पीछे हो जाती। बात टचिंग की नहीं है, बात क्या है, असल इम्पोर्टेंस क्या है, बहस क्या चल रही है, ख्वाहिश क्या है लोगों की, जमात। अकेले नहीं पढ़ता भाई, मेरे को कोई साथ देना, जैसा बोलते भाई मैं अकेला रियाद से जद्दा नहीं आता भाई, थक गया मैं, मेरे साथ को आना भाई, मैं अकेले बोर हो जाता, मैं बोलते रहे। तो जमात पढ़ने की नेकी की ख्वाहिश लोगों को, जिसकी वजह से क्या है, इसको चिपकाना उसको चिपकाना, मेरे साथ चिपका बोल के उन्होंने इसको इसके पीछे जमात बनाने की कोशिश करते हैं। तो इंटेंशन अच्छा है और जो है कोई ऐसा इंटेंशन अच्छा है, नहीं है। इंटेंशन अच्छा है। तो जमात का सवाब मिलता, आवाज देखी थी, दोबारा बोलिए। एक तो जमात का मिलता और आपकी नियत के ऊपर है क्या, दोनों चीजें। हाँ तो दो है तो ठीक है भैया, आप 2 रकात के लिए आप इमाम नहीं थे और लास्ट के 2 रकात में आप इमाम बन गए, आपको ज्यादा सवाब मिल गया, आधी जिंदगी आप ऐसा बिता। ऐसा कुछ बड़ा प्रॉब्लम तो मेरे को नहीं दिख रहा कुछ, ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सलाह टूट रहे नहीं, नमाज पे टूट रही नहीं, आपको जो कंपनी बना दी है आपके साथ कोई और फॉलो करना चाह रहे हो, इट्स नॉट अ बिग, देयर इज नथिंग, मतलब कोई डेंजरस कोई नेगेटिव तो नहीं दिख रहा मेरे को। हाँ वो क्या हंसी मजाक है, चलती जा रही ट्रेन, चलने दो, ट्रेन के पीछे ट्रेन, कंपार्टमेंट के पीछे कंपार्टमेंट, ऐसा मतलब कुछ है नहीं, कुछ ऐसा नेगेटिविटी नहीं है। अगर आप आइडियली उसके साथ बात करके शुरू से उसको फिक्स करके आप शुरू से उसके साथ फॉलो करें, एक अच्छा मजा है, अच्छा रिसाइलेशन सेट हो गया, उसके साथ दोस्ती सेट हो गई, बेस्ट है। नहीं होने वैसा कर और सामने वाला फटे नहीं करना भाई, मैं अभी तोड़ के मैं इसको फॉलो करके आता हूँ, मेरे को हाथ कहीं को लगा तो मेरे टच कहीं को मेरे से पूछे क्या तो मैं माफी चाहता हूँ, मैं मेरे को नहीं मालूम था, आपको बुरा दिखा, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो माफी मांग लेके जान दे भाई, क्योंकि थोड़े लोग हैं, क्योंकि कंपलसरी नहीं है ना कि कई को नहीं कर रहा भाई तो था मेरे को इमाम मंजिल तरह क्या जाता था, ऐसा तो नहीं है, एम्फसिस नहीं यार, वैसे आदमी के साथ पीछे पढ़ते भी क्या पढ़े कर रहा तो इंडिया में तो ये था, फिर क्या है इसका, तो इसके पीछे पढ़ना नहीं पढ़ना, फिर भी अरबों में एक दूसरे के पीछे पढ़ लेते, अच्छी चीज है माशाल्लाह, पूछते नहीं, इधर गौर करते नहीं, हरी टोपी पहना, हाथ इधर छाती पे बांधा, इसके एक रकात ऑब्जर्व करके आने भी अपने फिर दिख रहा है, चलो लोग कर सकते, तो इतना ज्यादा ओवर होता कभी तो ये उसको इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं, ऐसा कोई नेगेटिव नहीं दिखता। ये सवाल हो गया ना अपन, और नेक्स्ट हो गया अब मंसूर का है नेक्स्ट सलाम, नहीं सलाम तो लास्ट में देंगे, सलाम से पहले बकरे और एक भी है मंसूर का, 2 सवाल थे, सलाम का चलो लंबा है, सवाल मंसूर का क्या था तुम्हारा, वो जुम्मे की नमाज का। हाँ जुम्मे की नमाज से करेक्ट। हाँ जुम्मे की नमाज का देखो, कोरोना के टाइम पे जुम्मे की नमाज हम महीनों छोड़ दिए, तो काफिरा बन गए क्या, बीवियों के तलाक हो गए क्या, बीवियों से निकाह कर लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली क्या है, ये किधर से आता है, इसका ओरिजिन समझो लोगों का, तो लोग क्या है, एक दूसरे को डराना चाहते हैं, नमाज नहीं पढ़ना, और उमूमन मैं बोल रहा हूँ 97% ऑफ द मुस्लिम पॉपुलेशन स्पेशली इंडिया सिर्फ जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं, सिर्फ 3% लोग हैं जो 5 नमाज पढ़ते हैं इंडिया में। अरबों का जरा अलग है, थोड़ा उन लोगों का लेवल थोड़ा बेहतर है अपने से, मगर इंडिया में 3% है कहते हैं, एक एस्टिमेट स्कॉलर्स बोलते हैं, तो 97% लोग सिर्फ जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं। फिर जरा अपन ढील दे दिए तो ईद की नमाज पढ़, वही जो पढ़े नमाज दो ही, ईद फिर हमारे पास पढ़ते हैं, हमारे पास मुसलमान। हाँ तो ये उलमाओं की तो गुस्से में आ जाते, उलमा बोलते हैं जुम्मे की नमाज भी नहीं पढ़ते और 90 पॉपुलेशन पढ़ने वाले, तो इसलिए जुम्मे की नमाज तो मिस नहीं करना कम से कम। तो डर ऐसा बैठा हुआ है कि इंडिया में सिर्फ जुम्मे की नमाज में पढ़ती, बाकी के पूरे नमाजों में मस्जिद खाली है, तो वो कैसा हल करे, बोलते चुप चुप के बातें डाल दिए कि 3 जुम्मा मिस हो गए तो इस्लाम से बाहर। असल तो नमाज के बारे में हदीस ये है कि कुफ्र और मुसलमान के बीच की लाइन है, ये लाइन क्रॉस करे तो इधर क्रॉस करे तो मुसलमान बनते, इधर क्रॉस करे तो जो है काफिर बन जाते। तो नमाज जानबूझ के छोड़ना कुफ्र है, बल्कि पूरे उलमाए अगर, तो चाहे वो जुम्मे की रहो चाहे जोहर की रहो,
चाहे असर की रहो, इतना बड़ा है उसके ऊपर, मगर उसका स्ट्रिक्ट भी नहीं है, सेंस जानबूझ के, मतलब आपके पास वजू है, टाइम है, सब है, मैं नहीं पढ़ता, भूल गए, ओके है, ओके, जो है या काहली है, मगर इसका इम्पोर्टेंस जानते, मगर मेरे अंदर ताकत नहीं है, कमजोर ईमान का हूं, मेरे लिए दुआ करो, ये भी जायज है। जान की बूझ की जिद में मैं नहीं पढ़ता, मेरी मर्जी, मेरा दिल नहीं मानता, वो एक बाकी कैटेगरी आती जो कुफरी की तरफ लेके जाती। बाकी का कई लोग कमजोर के रहते, माहौल नहीं मिलता, एक नमाज होती, दो नमाज नहीं होती, नमाज हो जाती, क्या वो काफिर हो गए, क्या वो लोग इस्लाम के बाहर हो गए? क्योंकि हदीस तो पी है। तो ये हदीस इस सेंस में बोल रही, कई बार हदीस का एग्जैक्ट नहीं लेना, हदीस को ये लेना कि इस तरीके का मतलब, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, जो झूठ बोले वो हम में से नहीं, हम में से नहीं मतलब कौन? मुसलमान नहीं। तो मतलब आप झूठ बोलते, चाहे आप नॉन मुस्लिम बन गए, आप फिर बन गए, हिंदू बन गए, तो आप फिर बीवी से फिर निकाह करना पड़ता, नहीं निकाह करे तो जिना करे जैसा, क्या आपके बच्चे आपके नहीं होते, आपकी इनहेरिटेंस चेंज हो जाती? नहीं 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 नहीं, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये है कि मुहावरा है अरब में, हम पे से नहीं, मतलब अब तो बात को करो टाइप, मैं बहुत अब इसका लिटिल मीनिंग लिए कि हम में से नहीं, इस्लाम से बाहर नहीं करना, झूठ बोलने वाला इस्लाम से बाहर नहीं है, बाहर है, बल्कि हदीस को इस तरीके से इंटरप्रेट नहीं करना, क्योंकि लोग एग्जैक्ट ट्रांसलेशन लिए, मगर इसके हदीस के पस मंजर को, इसके बैकग्राउंड को, इसके रिलेवेंस को, अरब कल्चर को और अरबिक प्रोफेटिक ट्रेडिशंस और उनके प्रोवर्ब के कल्चर को नहीं समझे। वो प्रोवर्बियल कल्चर में, जैसा बोला था मैं आपको, 100 बार सुना ही नहीं उन्हें, मेरे देखो हाथ गिर गया गड़े, तो उन्हें आगे बोलो, तौबा कहाँ बोले आप? 37 टाइम्स ही बोले मेरे को, गाड़ी तेज मत चला, अरे उसका वो मतलब है, मतलब कई बार बोला थे, पर आप बोले झूठ बोले ना, अरे नहीं रे, 100 बार का मतलब है तो मुहावरा है कि बस कई बार बोला, कौन गिन लेते बैठे रे भाई, नहीं आप झूठ बोले, आप 100 कहाँ बोले, 100 कहाँ? तो वही अरब वाला पकड़ लेता, मगर हैदराबाद वाले समझ 100 बार का मतलब कई बार बोला, मुहावरा, तो मुहावरा है वो, हालांकि लिटरल मीनिंग लिए तो अलग ही कहा जाता। उसी तरीके से हम में एक प्रॉवर्ब है, इसका मीनिंग ये है कि मतलब शर्म की बात नहीं, कैसा मुसलमान बोलते, बल्कि तनकीद से बोला जा रहा, उसका वैसे मीनिंग। उसी तरीके से ये हदीस जी जो बोल रही नमाज के ताल्लुक से कि नमाज और बीच में दरवाजा है, गए नमाज छोड़ दिए तो मतलब कुफ्र की तरफ गए या काफिर है, बल्कि उसका मतलब ये नहीं है। कोशिश जानबूझ के पॉसिबल रह के रहने के बावजूद या ईमान नहीं रहने के बावजूद भी उसको करना कि नमाज नहीं पढ़ता, नमाज है ही जुमला बना लिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ तो भी ऐसा बेतुका बहस इस्लाम के बाहर कर रहे, बोले तो इस्लाम में 5 पिलर है, सलाह को एज अ पिलर तुम डिफाइन नहीं करे या एक्सक्लूड, आप 5 पिलर्स में से एक को हिला दे तो बिल्डिंग गिर जाती, तो वो पे कुफ्र है, इस्लाम के बाहर हो जाता। अब इस के लोग जुम्मे की नमाज पे लगाए, असल हदीस को लेके आप हर नमाज पे लगाओ, जो लगा नहीं वो कम से कम जुम्मा तो पढ़ता हूँ, ये अब आपकी शायरी, क्या ख्याल, ऐसा कुछ रीजन नहीं है। और अब तो कोरोना वायरस के टाइम पे तो जेन्युइन रीजन है कि आप वाकई में मस्जिद बंद है तो क्या वो होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है मंसूर भाई, ऐसा वो कल्चर में इंडिया में बहुत आम हो गया, कम से कम जुम्मे तो पढ़ने दो यार, और जुम्मा भी नहीं पढ़ा तुम काहे को मुसलमान हो गए, ऐसा एम्फसाइज करने के लिए। मगर दलील तो सिर्फ एक ही हदीस है, और वो हदीस का मीनिंग तो इस सेंस में है, फिगरेटिव सेंस में है। और क्या मैं सवाल भूल जा रहा हूँ, इसलिए आप लोग मेरे को याद दिलाइए। आदिल भाई, आज सुबह मेरे ऑफिस में एक हादसा पेश आया जी, बोल तो मैं आपको, ठीक है, हादसा क्या था बोल तो, मेरा एक दोस्त है, ठीक है, तो उसको इंडिया पैसे भेजना बहुत ज़रूरी था, किसी की हेल्प करना था उसको, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, हालांकि अमाउंट उतना बड़ा भी नहीं था इंडिया में उसको हेल्प करने के लिए, छोटा सा अमाउंट था, लेकिन उसके ना पैसे नहीं थे, तो वो पैसे उसने मुझसे पूछ के इंडिया भेजा। तो मैं उसको बोला कि भाई तेरे ने पैसे नहीं है, तू मेरे से पैसे लेके वहाँ भेज रहा, इतना ज़रूरी नहीं है ना, बोल के बोला मैं उसको। तो ऐसा कर सकते हैं आदिल भाई अपन, मतलब पैसे जरूरी नहीं है, तेरे पास नहीं है, हाँ, उसका ना पैसे नहीं है तो उन सामने की हेल्प उतना ज़रूरी नहीं है ना आदिल भाई करना। अब उसके ना पैसे नहीं है, उन अमेरिकन से पैसे लेके फिर इंडिया भेजा पैसे, वो जो बंदे को हेल्प करना था वो तो हेल्प हो गई उसकी, लेकिन उसके ना पैसे नहीं थे, अमेरिकन से पैसे लेके भेजा।
दार लेके नहीं मतलब हराम है क्या बोल रहे हैं आप ऐसा? नहीं हराम नहीं, उधार लेके कराओ, ऐसा अपन कर सकते हैं, अपने के पैसे नहीं है फिर भी अपन सामने लगे तो पैसे लेके अपन सामने लेके हेल्प कर रहे वापस करा फिर हैं जी। डुबा दिया क्या? नहीं 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 ये डुबा ये दिया नहीं क्या नहीं पैसे होने नहीं, ये सुबह, ये आज सुबह की बात है, अब तो मेरे को दे देता हूँ सैलरी मिलने के बाद। अच्छा, अब उसकी क्या मजबूरी है, वाकई में लाइफ एंड डेथ का मामला होगा। मैं एक्चुअली बहुत ही आला लेवल पे देखता हूँ मैं कि खैरात में आपके पास नहीं है, जब खैरात कर रहे, मंग के भी दे रहे, दूसरों को भी दे रहे, तो अच्छी बात है, इसको नेगेटिव सेंस में नहीं लेना चाहिए। हाँ, ये आपके पास पैसे नहीं है तो आपको पूछ नहीं है, आपको अल्लाह माफ कर देता। आपको सामने आए लोग पूछे और आप बोले मेरे पास वाकई में नहीं है, तो आपको अल्लाह पूछता नहीं, आप माफ है, आपको जो है ओके कर देते अल्लाह ताला कि भाई जान दो भाई पैसे नहीं है, तकलीफ देखने के बावजूद भी, दिल में रहम आने के बाद में भी हेल्प नहीं करा, मगर उसके बावजूद भी जद्दोजहद कर रहा, हालांकि कंपलसरी भी नहीं है, दीन में आसानी भी है, पूछ भी नहीं है, मगर उन्हें उसकी तकलीफ से इतना अफेक्टेड है कि उसको देखे नहीं जा रहा। तो हालांकि फॉर एग्जांपल अमेरिका में रोड पे एक्सीडेंट हुए तो कोई हाथ लगाते, सिर्फ एम्बुलेंस आना पुलिस का केस हो जाता, क्योंकि वो एविडेंस रहता हाथ नहीं लगाना, और एम्बुलेंस आने में कभी देर हो गई तो एज पर रूल्स उसको टच नहीं करना। मगर कई बार जो है आदमी तड़पते रह जाता, आप बोलते भाड़ में गए रूल्स, बल्कि उठाते खून आपको हाथ तक कपड़ों को लग जाता, फिर भी आप करते। तो कई बार इंसान ऐसे सिचुएशन से गुजरता कि उसको बर्दाश्त नहीं होता, और उन्हें, मैं तो समझता हूँ ये ईमान का आला है कि उसके पास नहीं है, उसके बावजूद भी किसी भी लेके कर रहा, तो वो उसकी स्पेशल तारीफ काबिल है कि मतलब या तो नेस्टिकली जेन्यून है कि शायद वो नहीं भेजे तो कुछ बड़ा ट्रेजेडी होने वाला है, या नहीं तो उसकी बर्दाश्त नहीं हो रहा, उसकी नींद नहीं आ रही, या नहीं तो बीवी का भाई होगा, नहीं भी तो बीवी डंडा मारती होंगी, अल्लाह आलम क्या नहीं नहीं होगा। नहीं मगर आदि भाई, मैं मेरे दोस्त को positive पूछा होगा। वहीं, तो वो बोला यतीम है बोल के बोला, जिसको मैं पैसे भेज रहा हूँ वो बंदा यतीम है बोल के बोला। अब तो बीवी का भाई तो नहीं है पक्का। बीवी के कोई रिश्ते फर्ज है, किफाया नहीं है, फर्ज है आपके लिए इंडिविजुअल, मैं तो घर में खाना नहीं मिलता तो चलो यतीम है बोल तो लिख दी है। नहीं, मगर अच्छी बात है। देखो कई बार यतीमों की हालत ऐसी रहती है, इमीडिएट सपोर्ट की जरूरत हो सकती है, कई बार तो हो सकता है वो एक्सट्रीम नेसेसिटी में ने इतना बड़ा स्टेप उठाया। मेरे हिसाब से पॉजिटिव अच्छी बात है। मैं तो बोलता हूँ अपने लोग पैसे रख के भी नहीं देते, और इन्हें पैसे नहीं रख के भी जो है किसी को जो है मदद करने की कोशिश करा, बड़ी बात है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी अच्छे हुए, सहाबियों के साथ उनको जरूरत के लिए भी नहीं था तो भी जो है कोई तो दे दिए। तो ये चैरिटी का एक्सट्रीम लेवल है कि आपको है, आपके पास नहीं है, फिर भी आप खैरात नहीं रोक रहे। बात है एक्चुअली देखा गया तो इतना आसान नहीं है इस लेवल पे पहुंचना। अगर ये तुम्हारी लाइफ की आदत है तो बहुत बड़ी बात है। ये वन इंसिडेंट है जहाँ पे आप पर्सनली किसी को जानते चाहते हो, उन्हें तकलीफ में, तो आप आउट ऑफ वे जाके करे, तो ये उतना बड़ी बात नहीं। मगर ये अगर आप पर्सनालिटी बन गए तो बड़ी बात है, बहुत तारीफ के काबिल है। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट वो सलाम का था। हाँ, नहीं सलाम से पहले वो बकरों का कर देंगे। बकरों का आदिल भाई वो शेव बना के करेंगे ना अपन? नहीं एक्चुअली वो उसमें सिर्फ सवाल तक है ना कि कितने बकरे काटना है बस, ठीक है पर फैमिली। कंटिन्यू कीजिए आदिल, कंटिन्यू। ठीक है आदिल भाई करिए। तो बकरों का सिंपल है एक्चुअली। हदीस तो ये है कि एक फैमिली के लिए एक बकरा, ये तो हदीस से साबित कंफर्म, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है एक ही काटते थे अपने फैमिली के तौर पे। हालांकि उनके 4-5 बीवियां भी थे और बीवियों को बच्चे भी थे, और पकवान अलग था क्योंकि हर एक हर बीवी का अलग अलग घर था, अलग रूम था, अलग किचन था। उसके बावजूद भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये करते थे। इसका मतलब ये है कि अरबों में अब इस तरीके से उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं कि अगर आप बाप है, आपके 4 बेटे हैं और 4 बेटे भी साथ ही रह रहे, तो जो है एक बकरा काटते। तो ये जो एक बकरा काटने का सब है एक्चुअली फर्द वाली चीज है, मतलब आपको मिनिमम एक तो काटना है। मगर जो है इसके ज्यादा काटे तो क्या नहीं काट सकते आप उस दिन,
अरफात के दिन जिस दिन बकरा करता उसमें अल्लाह ताला बोले उस दिन पसंद होने वाली सबसे ज्यादा चीज बकरा काटना है। तो कोई जो है 2 बकरा काटते तो काट सकते, तो परमिशन तो है, मगर मैं आपको इससे बेहतर बताता हूं कि उससे बेहतर क्या तरीका है नेकियां ज्यादा कमाने का, पैसे ज्यादा है आपके पास, आप 4 बकरे दे सकते। फॉर एग्जाम्पल इतना आता है ना कल कौसर फसल हर, ये छोटा सूरा, बेटा आवाज डिस्टर्ब हो रहा, आवाज हो रहा, इतना आता है ना कल कौसर, ये सूरत को बहुत अच्छी तरीके से मेमोराइज करे। इतना आता है ना कल कौसर फसल हर, वनहर मतलब काटना, कुर्बानी, सैक्रिफाइस। तो अल्लाह ताला ये सूरा जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तोहफा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला बोले हमने इन्ना आते, हमने तुम्हें कौसर दिया, इन्ना आते ना कल कौसर। कौसर का मतलब एक एक्चुअली अरबिक में मीनिंग जो है कौसर बोले तो लॉट, कसीर, कसीर, कसीर में भी वर्ड है नहीं सारा, कसीर, कसीर को उर्दू में क्या बोलते, ज्यादा, उर्दू का वर्ड है, हाँ बहुत ज्यादा, अबंडेंस, अबंडेंस। हमारे माशाल्लाह बीवी उर्दू में एक्सपर्ट है, वो उनके सामने जाना पड़ता है, हमारी पूरी इस्लामिक नॉलेज वेस्ट है उनके उर्दू के सामने। उर्दू में पूछ ले बोलते चलो टॉप हो गए भाई, बीवी का एज मसला रहता इस्लामिक नॉलेज जीरो रहे तो उर्दू था ना हम चला कसीर होता तो हमारे तो और हम ना भी चढ़ा देते, अरे आपके बगल बेकार हो जाता, आप तो क्या होता। तो कसीर का मतलब है अबंडेंस। तो अल्लाह ताला ने बोले इन्ना आते हैं ना कल कौसर, हमने तुम्हें बहुत अबंडेंस दिया, किसने दी तुम्हें, दौलत वौलत इस तरीके। और कौसर ये भी हज कौसर भी है, जब क़यामत के दिन जब लोग प्यास से तड़पते रहते हैं तो एक कौसर एक लेक का है जो पानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहता उस दिन, और उस दिन कोई और पानी, तो वो पानी अपने हाथ से अपने सहाबियों को, अपने चाहने वालों को, अपने उम्मतियों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिलाते अपने हाथ से। और जो कौसर का पानी पी लिया उसको सुकून मिल गया, उसको फिर प्यास नहीं लगती, हालांकि सूरज बहुत तेज रहता और तकलीफ वाला दिन रहता। तो वो कौसर की तरफ भी रेफरेंस है। एट द सेम टाइम ये भी रेफरेंस है, ये भी ओपिनियन है कि हमने तुम्हें बहुत दिया, कौसर, अबंडेंस। अबंडेंस में दुनियावी चीजों की बात कर रहे हैं कि दुनियावी चीजों में जैसा औलाद दिए, आपको बच्चे दिए, जॉब दिए, फसली ली रब्बी का, तो इसके बदले में रब का, फसली ली रब्बी, रब्बी का वनहर, तो रब लिए वनहर करो, और वनहर मतलब दियो। वनहर का दिन, डे ऑफ सैक्रिफाइस को वनहर बोलते हैं, जो गले के छुरी रख के काटते ना वो वनहर रहता हो। तो सैक्रिफाइस, गिव मोर एंड मोर सैक्रिफाइसेस, बकरे का इस सेंस में। तो इसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आयत मिली उसके बाद में टाइम गरीबी से थे, पैसा मिलता तो खैरात करते थे, तो हमेशा गरीब। कुछ ऐसे जंग हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एंड पे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है माल आया उनके पास और मुसलमान, तो जब माल आया तो उन्होंने उस बकरी दी बेस्ट 1000 ने या 100 काटे, 100, जो कि एक्चुअली बहुत बड़ी बात थी। और वो भी 100 कैमल्स कौन से, सुर्ख कलर के, जिनका सबसे मैन था वो जमाने में, वाव माने जाते थे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। तो इसके ऊपर उलमा ये बोले कि इसका रेफरेंस ये है कि जब आपको अल्लाह ताला दौलत दिए तो आप नॉर्मल बकरा काट के भी बच जा सकते, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेस्ट ऑफ द बेस्ट, हाई क्वालिटी का, हाई ब्रीड का, सेहतमंद, ताकतवर, सुर्ख कलर का, वो जमाने में जाफरान की कलर की ऊंट की बहुत ज्यादा वैल्यू थी, फॉर व्हाट एवर रीजन, हर कल्चर में किसी न किसी चीज की ही रहती, वो रखे, वो भी एक ने 100 काटे, और 54 कुछ अपने हाथ से काटे, बाद में थक गया तो हजरत अली को बोले आप बाकी के काटो और पूरे मुसलमानों को काटो बोल के बोले। तो दैट वाज द साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी। तो इससे ये स्कॉलर्स अंडरस्टैंड करें कि जब आपको अल्लाह ताला दौलत दिए तो आप छोटा मोटा नाम के वास्ते बकरा है भाई, कौन सा भी बकरा दे दो, आप बेहतरीन बकरा दो, टॉप क्वालिटी का दो, 30 किलोस का दे दो, भारी वाला देखो तो दिल खुश हो जाना, उसको बगैर अकड़ के सेल्फी लेना जैसा दिखता। तो क्योंकि आप अल्लाह ताला को दे रहे और आपकी सकत इतनी है कि आप 100 बकरे भी काट सकते साल तमाम, मगर जब अल्लाह को गिफ्ट दे रहे और आप ब्लेस्ड है और आपके पास दौलत है, बकरे के पीछे फड्डे क्या कर रहे हैं कि 1 देना क्या, 2 देना क्या, दो, दिल भर के दो, भारी वाला दो, सबसे महंगा वाला दो, 20,000 वाला दो, मगर शो ऑफ करेंगे, जहन्नम में डालेंगे, उसके बाद वो फेसबुक कुआं डालेंगे, सब लोग गली में राउंड मार के लेके जाएंगे, पूछेंगे माशाल्लाह कितने का 50,000 का बकरा, 1 लाख का बकरा नहीं। मगर अल्लाह के लिए प्राइवेट में आप बेहतरीन चीज देना चाहे ठीक है से आप दे सकते हैं। तो मैं ये बोलता हूँ
कि हाँ ठीक है भाई 4 घरा है, 7 खाना पकड़ा, 7 रह रहे, एक बकरा भी आपको काफी हो जाता है। नहीं मगर आप रियाद में रह रहे और अब्बा आपके हैदराबाद में रह रहे तो 2 बकरे तो होते थे, मगर आप 7 रह रहे, आपके अब्बा, आपका बड़ा जॉइंट फैमिली। पहले के जमाने में जॉइंट फैमिलियां थे, हवेलियां रहते थे, जहाँ जब बेटे बहू एक कमरे में रहते थे, बाप एक कमरे में रहता था, एक ही पकवान होता था या अलग अलग भी पकवान, मगर हवेली तो एक रहती थी। हाँ तो शरीयतन एक देना ही है, सफाइस कर जाता। इस्लाम में कभी भी कोई कॉन्सेप्ट सफाइस है, सफिशिएंट है, मतलब क्या है, वो मिनिमम है, आप इसके ऊपर वो ऐसा गुनाह नहीं है। मगर रसूलुल्लाह का तरीका क्या था, एक था। हाँ जब उनकी जरूरत नहीं थी, उनके पास पैसा नहीं था, तो आप क्या, पर्सनल ओपिनियन है कि 4 छोटे छोटे बकरे देने के बदले में कि इनका उनका बीवी का जो है कवर हो जाता शरीयत। उनको बीवी के नाम बीवी बोलते, मैं भी साहब होता तो मेरे पास भी गोल्ड है, मेरे पास भी पैसे तुमसे कम हूँ, मैं भी एक बकरा देती हूँ। भाई बोलता मैं भी देती हूँ, भाई की भतीजी बोलती। इस तरीके से ज्यादा बकरे देने के मैं ये मानता हूँ कि पूल करके एक भाई ना, क्योंकि अल्लाह को गिफ्ट दे रहे तो सादा वादा देना, क्वालिटी नहीं देना, क्वांटिटी इज नॉट इम्पोर्टेंट ना। आप 4 बकरे देने के अंदर में एक भारी वाला, मगर बहुत मुश्किल है, अकड़ नहीं आना। देखे आज मेरे पास बकरा कितना बड़ा कटा, 70 किलो गोश्त निकला। वो भाई बकरा ने पाड़ा था, इतना बड़ा था भाई, सब ना तारीफ कर ले रहे, बोलते आपका दिल मोटा हो जा रहा, अगर ऐसे फटे तो थोड़ी 2 रुपए एक दे दो काफी हो जाता। तो उस सेंस में उस नजरे से कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करो। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और ये मेरे दलाइल है और ये मेरी हदीस है, ये मेरी आयत की तरफ से जिसके तहत ऐसा बोल सकते हैं। अब ये अननेसेसरी लीग में अगर फंसे तो शरीयतन तो एक काफी है, सफाइस हो जाए, क्योंकि अल्लाह ताला आसानी का रास्ता करे। तो लोग तो कुछ ऐसा भी बकरे का गोश्त क्या काटते भाई, जान को कहते पैसे लेके गरीबों की शादी कर दो। थोड़ा ऐसे कम्युनिस्ट मुसलमाना भी है, क्या जो नन्नी मुन्नी जान को काट के तुमको क्या मिलता, बकरा चढ़ा रहे क्या तुम, ऐसे भी बेतुकी खैर वो लोगों को कैसा आंसर करना, वो अलग पर्सपेक्टिव, अपना इम्पोर्टेंस क्या है वो फिर कभी डिस्कस भी। कुछ आयतें आती हज के दौरान और कुर्बानी के दौरान, तो जब मगर ये इस हद तक फिक्स के पर्सपेक्टिव से एक सफाइस कर, मगर क्या 2 करे तो क्या गलत है, गलत नहीं, बेहतर तो ये रहता था इस तरीके से, ऐसा माना जाता। एक हम जो है घर पे देके एक किसी और के पास, जैसा गरीबों में या कहीं और यतीम खाने में ऐसा कटवाए तो हाँ कर सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है। मगर पहले वाले में भी गरीबों का हिस्सा निकलता ना, तो पहला वाला एक घर के लिए, दूसरा वाला गरीबों के लिए, ऐसा नहीं करना। हर बकरे में 1/3 निकलना, तो या तो पूरा मिला दे के 1/3 निकाल दो तो अल्लाह माफ करता है। एक बकरा पूरा फैमिली के लिए, गरीबों के लिए, एक बकरा रिश्तेदारों के लिए, ऐसा नहीं करना, क्योंकि हर बकरे में से 3 हिस्से निकल। जी अच्छा, तो यही खाना है बकरे का। और जी ठीक है, अब रहा लास्ट कॉन्सेप्ट के बारे में। सलाम का कितना टाइम हो रहा, आपने कोई कब खत्म हो रही है मीटिंग, और कितना टाइम है इसका? क्लास ही। अच्छा ये सेकंड शुरू हो गया ये विंडो। हाँ अच्छा ठीक है, तो कंटिन्यू करेंगे थोड़ा, एक 10-15 मिनट बात। तो सलाम का एक्चुअली लोग क्या है, कल्चरल बन गया सलाम। हाय हेलो यू टाइप में लोगों को टच करना है तो क्या हाल है भाई, सलाम के जैसा हो गया सलाम, वो एक तरीके से टचिंग हो गया। एक्चुअली कॉन्सेप्ट सलाम का खूबसूरत है और बहुत यूनिक है दूसरे रिलीजन से कंपेयर करें। जो दूसरे रिलीजन को अल्लाह ताला नहीं दिए थे तो मुसलमानों को दिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को दिए। सलाम बहुत यूनिक चीज है और एक्चुअली इसको अंडरस्टैंड करें तो उसके इतने फायदे होते हैं सोसाइटी लेवल पे और इंडिविजुअल लेवल पे आप। मगर क्या हो गया, एक आदत बन गई, वालेकुम सलाम, कुछ उसके बारे में गौर फिक्र नहीं कर, सलाम करे, क्या जरूरत है सलाम करने की, क्यों हमारे पे हुक्म दिया गया। सब निकलता वर्ड सलामती से। सलामती तो उर्दू वर्ड है, सलामती का मतलब है अस्सलाम वालेकुम भाई, तुम्हारे पे सलामती रहो, तुम कामयाब रहो, तुम फूलो फलो, बल्कि तुम दुआ दे रहे हो, उसकी अच्छा सोच रहे। वो हिंदुओं में कैसा बोलते हैं, जय श्री राम बोलते, जय सिया राम बोलते, नॉर्थ में तो कुछ। अब आप बोलो जय श्री राम, तुम वैसे मुसलमान को बोले तो रिटर्न में क्या बोलना, या तो नहीं बोलना जय श्री राम बेवकूफ पे बोलना, या तो श्री राम मैं भी मानता हूँ बोलना, जी जय श्री राम कुछ और श्री रहे और कामयाब रहे, कुछ नहीं बोल सकते उसको जवाब। वही आप देखो, आप बोला तो खुश रहे, इतना उसका दिल कैसा वो हो जाता, उस रिलीजन को भी हर्ट नहीं करे, चाहे उन्हें कोई भी रिलीजन हो, उसको रादर बोले अंडे तो कौन से भगवान को पूजा करता, तो हमारे भगवान को पूजा करता, ना कर तो मेरे को मेरे भगवान की तारीफ कर, या अल्लाह बड़ा है, अल्लाह अकबर भी ना बोल,
تو خوش رہے تو اچھا رہے تو پھلا پھلے. تو انہیں کتنا تم سے محبت کرتا ہے. اگر انہیں تم اس کو جینیولی طریقے سے بولے بھائی تو تکلیف میں مگر تو خوش رہے, کامیاب ہوگا, میرے کو جلن نہیں ہے, میرے کو حسد نہیں, تو انہیں کتنا تمہارے ساتھ کلوز ہو, تو کتنا دل کو افیکٹ کرنا, وہ کتنا اچھا دعویٰ کا پرسپیکٹو بننا. تو سلام اس طریقے سے تھا. اور اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے تم لوگوں میں ترقی جب تک آتی, سوسائٹی اچھی رہتی, جب سلام کو عام کرو, مطلب زیادہ زیادہ سلام کرو. زیادہ زیادہ سلام بول تو ہر اٹھے سے بیٹھے مگر اس دینی کے ساتھ نہیں کرے تو اس کی میراکلس افیکٹ آپ کے اوپر کیسا دی. جب آپ سامنے والے کو دل سے دیکھ کے ہاتھ ملا کے بھائی میں دوست میں عزیز ہوں, زبیر تو خوش رہے, تو سلامت رہے, تو ترقی کر میرے بھائی, بلکہ آپ یہ جذبہ سے فیل کرے تو کیا بولتے ہیں معلوم, آمین آمین آمین, تو بھی ترقی کر. جو تو جذبہ رکھا تو یہ نہیں بولا کہ بھائی تنا باقی سب کتنی سیلفشنس ہے, کتنی یہ وہ ہے جلن, سامنے والا نہیں کرنا, میچ کرنا, باقی سب غریبی رہنا, میچ امیر رہنا, تو سامنے والے کے بارے میں آپ اچھا چاہ رہے, تو یہ فیلنگ کے ساتھ اس کو جب ہاتھ ملاتے یا بولتے, تو جب ایموشن آتا تو اللہ تعالیٰ وہ جذبات کو دیکھتے, وہ جذبات کے خاطر سلام بولا گیا, وہ جذبات کو بھول گئے, اس کے میننگ کو بھول گئے, ایک لینگویج ہو گیا اور ایک کلچر میں آ گیا, اور اس کے بعد میں لڑتے. آپ سلام نہیں بولے, آپ پہلے سلام نہیں بولے, کیا چل رہا ہے یہاں پہ, دوستی بننے کے لیے سلام بولے, اللہ تعالیٰ دلوں کو لینے کے, وہ ایک پھڈے کرنے کی بات ہے نہیں. آپ جھک کے سلام کرے کہ نہیں سلام کرے, پیٹ میں منڈی ڈال کے نہیں سلام کرے, یہ سب پھڈے, میں کہ تم کو ایک کرنا تھا, تم کیوں نہیں کرے, دیکھو تمہارا بیٹا بہت کر رہا, سلام نہیں سلام نہیں, میں کئی بار سے ابزرو کر رہا ہوں, تاک میں بیٹھے ہوئے رہتے نا کہ کہاں زیادہ پیسے والے ہو گئے تو اب ہوتے ہوتے بول کے الزام لگانے کے لیے ریڈی بیٹھے ہوئے رہتے, اور کبھی ہوتے ہوتے ہو جاتا, اپنے سے آتا سیدھا لیٹر ای میل چلے آتا, کیا آپ بیٹا سلام دے کر, یہ افسوس کی بات. تو ہم کیا کرنا, ٹھیک ہے بھائی, ہمارے لیے کیا حکم ہے اللہ کی طرف سے, ایک دوسرے کو سلامتی کرو اور مین کرو, کلچرلی مت کرو کہ بھائی اب آپ اس کو پازیٹیو لو, غلط مت لو اس کو. اتنے ہم لوگ کلاسز شروع کرتے ہیں, السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم, پھر وہ تو اچھا نہیں دکھتا. اچھا نہیں دکھتا مطلب کیا ہے, آپ لوگ برے لوگ ہیں, آپ لوگ بہت کلوز فرینڈس ہیں, ایک دوسرے کا اچھا چاہتے ہیں, بہت پازیٹیو لوگ ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ, مگر میرے کو برا کیا دکھتا. اور آپ بول کے نہیں, کئی لوگ بھی بولو مگر جذبے کے ساتھ بولو, پیشن کے ساتھ بولو, اور ذرا سامنے والے کو فیل ہوئے جیسا بولو, اور سامنے والا اس سے خوش ہوتا, اور جب یہ عام ہوتا تو کتنا اچھی بات ہوتی. اب بولو جب اتنی اچھی چیز اللہ تخنے کو دیے, اور جو ہے آپ ایک نان مسلم کے پاس جا رہے, اور یہ نیوٹرل سلیوٹنگ ہے, اور بولے السلام علیکم کے بولے. اور ذاکر نائک ہمیشہ نان مسلمس کے ساتھ جب بھی کیمپ وغیرہ کرتے جاتے سب سے السلام علیکم ٹو آل مائی بردرز اینڈ سسٹرز بول دیا. اب آپ بولو السلام علیکم بولنا کیا غلط ہے, کیا یہ بہترین دعویٰ نہیں ہے؟ اس کو السلام کے بارے میں ایکسپلین کر دو, کتنا خوش ہو جاتا, بھائی تو دل سے بولا ہو بھائی, میں دل سے بولا بھائی, آپ کتنا اچھا ہے بھائی, تو وہاں سے ایک ٹچ ہو جاتا, ایک کنورزیشن سٹارٹ ہو جاتا. اس کے بعد میں اس کو ہلو اسلام لے کے آ سکتے, تو کیوں روکنا. ہم اس کے پیچھے گڑبڑ کی دلیل بولتے. ایک حدیث ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایکسپیکٹ پیریڈ کے ٹائم پہ یہودیوں کو نصاروں اسلام انیشیٹ مت کرو بولے تھے, مگر یہی گڑبڑ ہے. حدیث کو کانٹیکسٹ لیتے, جنرلائز لے لیتے, اس زمانے کی اس سچویشن پر. یہ خصوصاً ایسے وقت تھا جب وہ لوگ اتنی پلاٹنگ کرتے, زدم زد پہ آ گئے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو میسیج دے کے گئے, مگر وہ لوگ سمجھ رہے نہیں, اور جو ہے اپنے کو ہیوملیٹ کرنے کی جن میں آ گئے وہ لوگ اس سینس میں. تو ہم لو لیول پہ آ گئے, تو جب مت کرو بول کے بولے. اور خصوصاً یہ دور عمر رضی اللہ کے دور میں, جب ہم لوگ پورا عرب پیننسولا کے تھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے کہ عرب پیننسولا میں ایک ہی ریلیجن رہنا, یہودیوں کو نکال دینا, بھیج دینا, اور یہ صرف اسلام رہنا. ہاں میں رہیں گا, انڈیا میں رہیں گے یہودیاں, کرسچنز اور ہندوازم رہیں گا, اور عرب ایک اسپیسیفک ایریا پیور رہنا چاہیے بول کے ان کے خواہش سے, اور عمر رضی اللہ نکال لیے. اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ لوگ, ہم جب اللہ تعالیٰ ہمارے دیا تھے اور پاور دیا تھا, تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے کہ ہم ان کو اس سینس میں دعویٰ کے پرسپیکٹو, ناٹ ریئل ہیوملیشن. کیسا کہ مطلب آپ کو اللہ تعالیٰ سیکنڈ کلاس سٹیزن بنایا, آپ لڑے تھے ہمارے ساتھ, آپ ہار گئے, اب آپ کو اللہ تعالیٰ ہمارے تابع کرا. آپ ریئلائز کرو اور غور و فکر کرو, کیوں آپ کس طریقے سے آپ کا خدا کرا, آپ کا ساتھ تو آپ کو چاہتا نا, ہمارے کو تو نہیں چاہتا, پھر کیوں آپ کے ساتھ ایسا ہوا. غور و فکر کرنے کے لیے, وہ شو کرنے کے لیے, وہ ایک اسٹریٹجی تھی فار اے لمیٹڈ پیریڈ آف ٹائم. نہ کہ اسلام ہمیشہ ہر کسی کو ایسا سکھاتا, نہ ہر کوئی اپلائی ہوتا جنرلی. تو یہ پورا کانٹیکٹ نہیں سمجھ کے وہ ایک حدیث کو لے کے انیشیٹ
करो बोले तो हम नहीं बोलना बोल के हम लोग समझ जाते। मगर मैं बोलता हूँ का भी एक्सप्लेनेशन और एक भी ले सकते कि आप दावा कर रहे, आप जो है जनरल दावा के मूड में है और आपका पर्सपेक्टिव वो है और आपका वो स्टेज चल रहा, तो आप यूज करो उसको पॉजिटिव, उसमें बहुत बरकत है। वो हिंदुओं की कोई सूट ले लो, आपको अजीब दिखती हो, जैसा हिंदुआ कुछ तेलुगु वाले कुछ बोलते हैं जय श्रीनिवास कोंडा बोलते, ये भगवान की याद करते, तो हम कैसा उसको हाँ या ना बोल सकते हैं, उस दिन हाँ बोल सकते हैं ना बोल सकते, जवाब ही नहीं दे सकते। वो हमारा कितना अच्छा है जो, और हम कितना उसको नॉन मुस्लिम रहने के तो तरक्की उतर बोल के चाह रहे हम उसको, तो ये कितनी अच्छी बात है। तो इसको इस तरीके से लेना चाहिए। इसके ऊपर इतना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, इतनी बहस है, मगर जाकिर नाइक जैसे लोग तो सुनते नहीं, उन्होंने कर रहे अपना कर रहे, उनको सक्सेस मिल रहा माशाल्लाह, प्रॉफिटेबल है, अच्छा उनकी मेहनत रंग ला रही। अब ये टेक्निकल इशू है, वो डीप में नहीं जाते, उसको अंडरस्टैंड नहीं करते, मगर ठीक है जो है अपन खुसूसन जब पावर के पोजीशन में जैसा सऊदी जैसा कंट्री में है जहाँ वाले आपसे थोड़ा नीचे है नॉन मुस्लिम्स, राइट, तो आप पोजीशन ऑफ पावर में रहे जब आप अपनी हम्बिलिटी शो करने के लिए कब, मगर आप जब नीचे है और सामने वाला उभर के डोमिनेट करा, जैसा जमाने में मुसलमान नीचे थे, तो जब आप सलाम बोले तो हो सकता कि उन्हें आपको सरेंडर कर दिए, वीक कर दिए बोल के बोला, तो जब आप शो करना हम वीक रहते, हम पावर, हम अल्लाह की इज्जत के ऊपर खड़े हुए हैं बोल के, तो जब नहीं बोलना वो एक ओपिनियन हो सकता, फतवा हो सकता फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। तो इसकी कई बारीकियां हैं, तब कई एस्पेक्ट्स है, उसका सब जनरल रूल लगा के नॉन मुस्लिम को मत बोलो बोल तो गलत बात। तो इतनी इसके पीछे बारीकी है और फिक्र करना, तो आप सिचुएशन के हिसाब से सऊदी के कंट्री में आप पोजीशन ऑफ पावर है, आप किसी के पैर चाट रहे नहीं, तो आप कर सकते मेरे हिसाब से। हाँ, इंडिया में जो है अब हमारी हालत बैंड बजरी, हम कमजोर है और हमारे को ह्यूमिलेट करना चाह रहे, रैलियां निकाले तो जानबूझ के मस्जिद के सामने से निकालते, उनके गाने गाते, हमारे को जय श्री राम बोलने लगाते, तो ऐसे टाइम पे हम उनको सलाम बोले तो हम डर गए, देखा बुजदिल हो गए। तो हो सकता है इस सिचुएशन में मत बोलो आप इंडिया में, और सऊदी में बोल सकते, क्या दावा के लिए बोल सकते बात। तो पर्सपेक्टिव है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, मैं आपको प्रो बता दिया, नेगेटिव बता दिया, कौन सा चीज क्या है बता दिया, अब आप लोग बेस्ट जज है कि इसको किस तरीके से यूज करें। एनी क्वेश्चंस? मैं मेरे तो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह से, माशाल्लाह से अच्छा था आपका एक्सप्लेनेशन। तो आदिल भाई ये सलाम जो अब सलाम का जो आप बताया अभी, तो सिर्फ अस्सलाम वालेकुम बोलना है, पूरा नहीं बोलना है नॉन मुस्लिम सलाम, जैसा मंसूर का क्वेश्चन था, दोबारा रिपीट कीजिए। मंसूर का क्वेश्चन क्या था कि हम नॉन मुस्लिम को सलाम कर सकते हैं क्या? ठीक है, Okay. तो हम सलाम सिर्फ इतना ही बोल सकते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, ये अपॉन यू, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू नहीं बोल सकते नॉन मुस्लिम। अब ऐसा तो कुछ ऐसा ओपिनियन नहीं है एक्चुअली। देखो वो कहाँ से निकला, सलाम तो अस्सलाम वालेकुम ही, तो ये इसके पीछे हदीस क्या है कि जब कोई आपको तो दो रोटी ला के दिए घर से, तो आप रिटर्न में क्या करते हो, उनको कभी मौका मिला तो 3 रोटी देते हैं, तो गिफ्ट को अच्छी तरीके से रेस्पॉन्ड करना चाहिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कोई आपको अस्सलाम वालेकुम बोले, आपको चाहे, आपको मोहब्बत करे, आपकी कामयाबी हासिल करना चाह रहे, आपको खुश देखना चाह रहे, तो आप भी जज्बात में क्या बोले, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, जाओ वहाँ पे रहमत भी हो बरकत भी हो। ये रिटर्न सेंस में बोला जा रहा, फर्स्ट में कभी नहीं बोलेगा डायरेक्टली अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट है, सेकंड में आदमी खुशी से बोला जाता है अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसका मतलब नहीं कि फर्स्ट टाइम में नहीं बोलना, मगर प्रेसिडेंस इस तरीके से है। तो नॉन मुस्लिम को जब आप फर्स्ट टाइम बोल रहे तो आप उतना कहीं को लंबा, तो मुसलमानों को वैसे भी कोई भी नहीं बोलता अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू फर्स्ट शॉट में, अस्सलाम वालेकुम बोलते कैजुअल रहने के लिए। तो ऐसा कोई उसके ऊपर कुछ ओपिनियन तो नहीं है, कुछ ऐसा सुना तो नहीं मैं कोई अभी नेगेटिव उस सेंस में। अस्सलाम वालेकुम बोल दिए तो रहमतुल्लाह भी बोल दो, बरकत भी बोले, तेरे बच्चे भी अच्छा रहे, तू भी अच्छा रहे, तेरा भी दिमाग अच्छा रहे, तेरी भी कोरोना से बच के रहे, तेरी फैमिली भी, बोल दो, क्या है दुआएं देना है, क्या भी दो, क्या है, कौन सा इस्लाम के खिलाफ जा रहे हैं। हाँ, मगर सिचुएशन देखो, पस मंजर देखो। हाँ, लोग क्या बोलते कि मतलब तुम कैसा बोलते, अल्लाह की रहमत हो, काफिर पे बोलते लोग। अल्लाह की रहमत अब नहीं है, लोग करोड़पतियां नहीं है, टॉप 10 फोर्ब्स लिस्ट में सबसे रिचेस्ट में ना करोड़पतियां नहीं है, उनको बीवी बच्चे नहीं है, उनके लाइफ में अच्छे नहीं होंगे, बच्चों की शादी नहीं है, उनकी रहमत है ऑलरेडी। आप वही समझो, रहमान और रहीम में फर्क देख लो। सूरह फातिहा में पढ़े थे, रहमान काफिरों को भी होता, रहीम मुसलमानों को होता। तो रहमान में क्या है, दौलत नहीं मिलती उनको, नहीं मिल रही उनको कामयाबी, तुम नहीं चाहे तो भी नहीं मिलती। वर्ल्ड टॉप 10 रिचेस्ट में ना पूरे नॉन मुस्लिम मुसलमान है भी नहीं, टॉप 50 में भी नहीं है। सबसे ज्यादा रिच कंट्रीज उनके है, सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी कंट्रीज ये है, सबसे ज्यादा दबदबा उनका है। तुम चाहो ना को चाहो, हो रहा है इस पर। तो आप किस सेंस में बोल रहे हैं कि आप उनके ऊपर रहमत नहीं होना?
दीन की रहमत नहीं होना, वो भी कई को बोल रहे हैं कई को ने मुसलमान नहीं बनना, कई को ने हिदायत नहीं लेना, रहीम भी होना उस पे। अल्लाह की रहमान तो ऑलरेडी हो रही है, रहीम भी हो, ये रहमत भी हो, वो रहमान और रहीम दोनों के रहम से, तो आप रहमान तो हो रहा उनके साथ, रहीम भी हो जाए, उन्हें मुसलमान भी बन जाए। तो ये रहमत की तरफ आप सोचो। अगर आपको चुभ रहा कि उन्हें रिच हो गया और नहीं चाह रहे कि रिच होने से अकड़ रहा, उन्हें दीन की तरफ नहीं चाह रहा, तो आप रहम जब रहमतुल्लाह बोलते, तो अल्लाह की रहमत कैसी हो, रहमान वाली हो, रहीम वाली हो, उन्हें कुरान की तरफ आओ, वो रहम नहीं है, वो अल्लाह की रहम नहीं होगा, तो हाँ तेरे पे अल्लाह की रहम हो, कौन सी वाली, कुरान वाली, हिदायत वाली, मुसलमान वाली, वो भी नहीं हो सकता। तो ऐसा कुछ वो नहीं है। आज क्या है, मुसलमान जो है सामने वाले को कन्वर्ट करने चाह रहा, उसको ह्यूमिलेटेड देखना चाह रहा, ये गंदी नीयत होने की वजह से चाह के भी हमें ह्यूमिलेट हो रहे, पूरे 56 कंट्रीज में देख, पूरे वर्ल्ड में देख लो आज। इसलिए कई को जा दुनिया में तरक्की कर ले, तो तरक्की की वजह से तो तेरा दिमाग अल्लाह की तरफ पलटे, तो कभी कुरान पढ़ ले, चाहे कि तू मुसलमान बने, तो ऐसा कोई वो नहीं। आप किसी तरह किसी की फैमिली के साथ कोई प्रॉब्लम हुआ होगा, नॉर्थ इंडिया का था होगा, उसकी फैमिली को अटैक किए होंगे, फैमिली को जलाए होंगे, अब उसको नफरत भरी हुई मुस्लिम से, नको करो बोलता होगा, मगर ऐसा तो कोई ऐसा कुछ दलील तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी रहमत हो रही थी उस पर, तो दौलत है, सब है, आपसे ज्यादा हो सकती फॉर एग्जाम्पल, वो ऐसा उसका कोई मीनिंग नहीं। आप उस पॉजिटिव सेंस में लीजिए कि जो हो सकते है तेरे पास और बड़ी रहमत हो अल्लाह की तेरे ऊपर, कि तेरे दिल खुल जाए, की तरफ आ जाए, तो ऐसा ले सकते। हो गया ना पेपर, हो गया जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलो वाइंड अप कर लेंगे, लेट हो जाए। इसको वाइंड अप कर देंगे, ये ऑडियो भेज देंगे, ऐसा कुछ है तो फिर मैं कॉल करता हूँ। और इसको कैसा लिमिट इंग्लिश के सेटअप करे, अच्छा करे। अब हम इंजीनियर जरा शोएब को भी सिखा दो, बार बार तोड़ते जाते हैं, ब्रेक हो जा रहा कंसंट्रेशन, कंटिन्यूस चल रहा तो अच्छा है। ठीक है जी लोगों, शुक्रिया, अच्छी थी मीटिंग माशाल्लाह, आपका एक्सप्रेशन बहुत ज़बरदस्त था, बेहतरीन करे माशाल्लाह से, तबीयत खुश हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया। नहीं, कभी मैं टिपिकल तफसीरा करने के बदले में जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ऐसा था, काफिरान के ऐसा हुआ, एक इमेजिनरी स्टोरी के एक दिन जो है आजकल के सॉल्यूशंस, आजकल के प्रॉब्लम, कल के लोग जरा एक्साइटिंग दिखता, अच्छा आज ऐसा चला, आज ऐसा मसला चला, आज नॉन, तो क्या है, कई बार क्या है, थोड़ा एक हटके भी रहता, वो 14 पहले की कहानियां समझ रहे हम, उसके जरिए तफसीर समझना जरूरी है हमारे को, मगर आज की सोसाइटी पे आगे तो लोग ज्यादा लिंक कर सकते हैं, फ्रेश हो जाता है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो जाता है। हमेशा ऐसा करना चाहिए। आज के मसले मसाइल के हिसाब से कैसा है, आज के मसले क्या है, आदमी जरा ज्यादा लिंक भी करता, तो कई बार 1400 साल पहले हुआ था, ऐसा किंग बन रहा था मदीने का, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल गए, मुनाफिक बन गया, उन्हें उंगलियां करा, ठीक है भाई, वो सब ठीक है, वो एक थोड़ा ड्राई, तो बीच में थोड़ा ऐसा एक्साइटिंग टॉपिक्स, ऐसा डिस्कशंस कर, तो जरा फ्रेश अप हो जाते हैं, जरा डिफरेंट पर्सपेक्टिव आज आने में आ जाते हैं अपन, तो पुरानी 70s की पिक्चर देख रहे, ब्लैक एंड व्हाइट की, राइट, तो जरा आज का भी देख रहे, तो ये भी एक थोड़ा गैप लेके में एक कैसा तो भी करे सके, अच्छा है, उसके सवाल आए तो अच्छी बात। ऑलरेडी क्वेश्चन थे, एक और क्वेश्चन है। अच्छा, देखिए इसको भी एनकरेज करेंगे इंशाल्लाह बजान, ओके बजान, इंशाल्लाह, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।